છું જીમિત ત્રિવેદી. આજનું આપણું જે સેશન છે જે છે કોકોનટ થિયેટર પ્રેઝન્ટ્સ ચાય વાય અને રંગમંચ. મિત્રો, આજનું સેશન આપણે શરૂ કરીએ અને એમાં આજે જે મારે વાત કરવાની છે આપ સૌની સાથે એ છે કે જે મારી કરિયરની મેં જે શરૂઆત કરી થિયેટરથી, થિયેટરમાં મેં જે પાત્રો જે મેં ભજવ્યા છે એ પાત્રોનું મારી લાઈફમાં શું ઇમ્પેક્ટ પડ્યું છે, આજે એના વિશે વાત કરવાની છે. અને હું બહુ એક્સાઇટેડ છું આ બાબતે વાત કરવા માટે, કારણ કે ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે અમે જે પાત્રો ભજવતા હોઈએ છીએ એની અંદર એટલા બધા ઓળઘોળ થઈ જતા હોઈએ છીએ કે જીવનમાં ક્યાંક એ અમારો એક ભાગ બની જતો હોય છે એ પાત્ર. અને એના વિશેની જ આજે વાત કરીશ. પણ મારી થિયેટરની જર્ની જે શરૂ થઈ હતી એ પણ એક પાત્રમાં જ હું એને ગણી લઈશ, કારણ કે આપણે હંમેશા ઘણી બધી વ્યક્તિઓને આપણે ભૂલી જતા હોઈએ છીએ. તો અહીંયા આગળ હું એક એવી વ્યક્તિનું નામ પહેલા આપીશ કે જેને કારણે મારું થિયેટરમાં અંદર આગમન થયું, મને એક આવવાનો મને એક રસ્તો મળ્યો. પણ વાત એ છે કે હું બાય પ્રોફેશન હું ડાયમંડ અસોર્ટર છું, અને પ્રોફેશનલ ડાયમંડ અસોર્ટર છું. અને એક ઘટના એવી થઈ કે મારું નસીબ મને આ લાઈનમાં લાવવાનું હશે, અને એમાં ડાયમંડ માર્કેટ ક્રેશ થઈ. અને જોગાનું જોગ એવું થયું કે મારો મિત્ર જે મારો કોલેજમાં સિનિયર હતો, કપિલ ભૂતા, અને એ વ્યક્તિની સાથે મારી જ્યારે વાત થઈ અને નમસ્કાર જ વાતચીત કરતા કરતા મેં કહ્યું કે ભાઈ કપિલ, કંઈ કામકાજ હોય તો મને જણાવજે, કારણ કે હવે જે જગ્યાએ જવાના હતા એ તો હવે અત્યારના બધું પડી ભાંગ્યું છે, ડાયમંડ માર્કેટ ક્રેશ થઈ હતી. તો એણે મને અનાયાસે જ મને કહ્યું કે જે ઇન્ટર કોલેજેટમાં 2 પ્લે કર્યા હતા, અને એમાંનું એક પ્લે હતું જલસા કરો જયંતીલાલ. ઇન્ટર કોલેજેટમાં એનું નામ જયંતીલાલ હતું, અને એ ઘણા બધા અવોર્ડ્સ જીત્યું. અને એ બહુ આપણા ફેમસ પ્રોડ્યુસર સંજયભાઈ ગોરડિયા એને કમર્શિયલમાં પ્રોડ્યુસ કરી રહ્યા હતા. અને અમારા ડિરેક્ટર સાહેબ વિપુલ મહેતા, જેમને આપ સૌ જાણો છો, સંજયભાઈને પણ આપ સૌ જાણો છો. તો એમણે આ નાટક જે છે એને કમર્શિયલમાં બનાવવાનું એમણે નક્કી કર્યું, અને એમાં દિલીપ જોશી હતા. તો મારું એ નાટકમાં આવવું એ હું આભારી છું કપિલ ભૂતાને, એ બાદ વિપુલ મહેતા જેમણે મને ચાન્સ આપ્યો, સંજય ગોરડિયા જેમણે પણ મને ચાન્સ આપ્યો, અને મારી બેકસ્ટેજથી મેં મારી કરિયરની શરૂઆત કરી. બેકસ્ટેજને પણ હું એક પાત્ર તરીકે જ હું ગણીશ, કારણ કે હું મારું સૌથી મોટું, સૌથી બેઝિક જે વસ્તુ જે છે એ હું શીખ્યો બેકસ્ટેજથી. અને એ બેકસ્ટેજ એક એવી વસ્તુ મને શીખવા મળી જ્યારે, અને રાધર મને શીખવાડી, એનો બધો શ્રેય હું આપીશ શ્રી દિલીપ જોશીને, જે ખૂબ જ મોટા અને દિગ્ગજ કલાકાર છે, ને એ સાથે સાથે એટલા જ સુંદર વ્યક્તિ પણ એટલા જ સુંદર છે, જેમની પાસે હું બેકસ્ટેજ શીખ્યો. અને બેકસ્ટેજમાં હું શીખ્યો કે ડિસિપ્લિન શું હોય છે, અને બેકસ્ટેજમાં એનું મહત્વ શું છે, નાટકમાં એનું મહત્વ શું છે. એ ડિસિપ્લિન મારી લાઈફનો એક અભિન્ન ભાગ બની ગયો છે, કે ડિસિપ્લિન આજ દિન સુધી મારી સાથે છે, મારા જીવનનો એક ભાગ બની ગયો છે. ને એ ડિસિપ્લિનને કારણે જ આજે હું જ્યાં આગળ પણ પહોંચ્યો છું, એમાં એક ડિસિપ્લિન કે મારી લાઈફમાં પણ હું જે પણ વસ્તુ અચીવ કરી શક્યો છું, એમાં ડિસિપ્લિન એક બહુ મોટો ભાગ ભજવી ગયું છે, અને હજુ પણ ભજવી રહ્યું છે, અને ભવિષ્યમાં પણ ભજવશે જ. તો ડિસિપ્લિનથી વસ્તુ શરૂ થઈ મારી એક, અને જેમાં મેં સૌથી પહેલું મારું નાટક હતું જલસા કરો જયંતીલાલ. અને જલસા કરો જયંતીલાલમાં એક નાનકડો રોલ કર્યો હતો, ગંગુ મામા કરીને. ઘરમાં એક કામ કરે છે, જે મારું પહેલું જ પાત્ર એવું હતું કે જેમાં હું ઘરડો હતો, લગભગ 60 વટાવી ચૂકેલો એક વ્યક્તિ હતો, અને ઘરમાં બિચારો કામ કરે છે. તો ત્યાંથી મારી શરૂઆત થઈ હતી. પણ ડિસિપ્લિન એક પાત્ર તરીકે કરીશ, કારણ કે એની ઇમ્પેક્ટ મારી લાઈફ પર બહુ મોટી પડી છે. એ પ્લેમાં ઘણું બધું શીખ્યો. એક્ટિંગ વિશે તો એટલું બધું નહોતો શીખી શક્યો, કારણ કે એક્ટિંગના શું હોય છે, એના ક્રાફ્ટ કોને કહેવાય, કે ડાયલોગ બોલતી વખતે પેસ કોને કહેવાય, સ્પીડ કોને કહેવાય, રિએક્શન, એક્શન, આ બધી કે પોઝ, ગેપ, આ બધી જે ટેકનિકલ ટર્મ હતી એ વિશે મને કંઈ બહુ જાજો કંઈ જ્ઞાન નહોતું મારી પાસે. પણ પહેલી શરૂઆત જે પહેલથી એ ડિસિપ્લિનથી શરૂઆત થઈ, જલસા કરો જયંતીલાલથી. અને ત્યારબાદ મારી લાઈફમાં એક બહુ મોટો વળાંક આવ્યો, અને એ વળાંક હતો ખેલૈયા, જે શ્રી પરેશ રાવલ, શ્રી મહેન્દ્ર જોશી, સ્વર્ગસ્થ મહેન્દ્ર જોશી, અને ખૂબ સુંદર લેખક અને ખૂબ સુંદર વ્યક્તિ
એક માણસ ચંદ્રકાંત શાહ જેમણે આ નાટક લખ્યું હતું, મહેન્દ્ર જોશીએ આને ડિરેક્ટ કર્યું હતું, અને પરેશ રાવલ, અને લગભગ આઈ ગેસ આખી ઇન્ડસ્ટ્રી આ નાટકની અંદર કામ કર્યું હતું. મ્યુઝિકલ પ્લે હતું, અને હું આ નાટકનો એક ભાગ બન્યો, અને એમાં મને મારા માથે એક બહુ મોટી જવાબદારી હતી હીરોના રોલની. અને એ હીરોનો રોલ મારા માટે બહુ મોટી એક ચેલેન્જ હતી, કારણ કે એક તો એટલા બધા દરેક પાત્રની એક સોલો લોકી આવે, એક મોટું એનું એક્સપ્લેનેશન આવે કે પાત્ર શું છે અને શું કામ છે, અને એ વિશે મારે બોલવાનું હતું, અને એટલે મારે પરફોર્મ કરવાનું હતું રાધર, જે બહુ જ ટફ જોબ હતો. સાથે સાથે મારે ગાવાનું પણ હતું, ગાતા ગાતા મારે ઇમોશન્સ પણ મારે ઇમોટ કરવાના હતા, મારે ડાયલોગો પાછા ક્રાફ્ટ પ્રમાણે બોલવાના હતા, એનો એક ગ્રાફ હોય એ પ્રમાણે મારે બધી વસ્તુઓ કરવાની હતી, જેને મેં ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો અને ખૂબ વડ પણ પડેલી. પણ હું બહુ જ આભારી છું એ આખા પ્રોસેસનો, એમાં ખાસ ઉમેશભાઈનો, દિલીપભાઈનો, જેને કારણે હું નાટક સુધી પહોંચ્યો. અને એમાં જે પાત્ર હતું હકુન, એ હકુનું જે પાત્ર હતું અને હું ત્યારે એ જ ઉંમરનો હતો કે એક યંગ છોકરો જે એનું એક ઇન્ફેક્ચ્યુએશન છે, એને પ્રેમમાં પડે છે, અને ઇન્ફેક્ચ્યુએશન વાળા પ્રેમમાં શું શું થાય, અને તમારી જે બાલિશતા હોય અને તમારી જે નાદાની હોય, આ બધી નાદાનીને કારણે તમે શું ભૂલ તમે કરી લેતા હો છો જીવનની અંદર. અને હા, એ બધું જ ત્યાં ભોગવવા મળ્યું. ને બેસ્ટ પાર્ટ હતું કે હું ત્યાં સુધી કોઈ દિવસ પ્રેમમાં પડ્યો નહોતો. પ્રેમમાં પડ્યો હતો પણ એટલી હિંમત નથી કોઈને જઈને કહેવાની. અને એ જ્યારે આ નાટકમાં જ્યારે આવ્યો ત્યારે ઘણું બધું શીખવાનું મળ્યું એ આ પાત્ર દ્વારા, આ નાટક દ્વારા. કારણ કે સૌથી પહેલા તો ગુજરાતી ભાષા વિશેનું મારી લાઈફ પર બહુ મોટો ઇમ્પેક્ટ પડ્યો. કારણ કે સ્કૂલમાં હતો ત્યારે ઓલવેઝ એવું થતું હતું કે હંમેશા કંઈ ભણવામાં એટલું બધું ધ્યાન રહેતું નહોતું, મસ્તી મજાક ધમાલ મસ્તીમાં જ ઓલવેઝ આપણે રહેતા હતા. એટલે ગુજરાતી ભાષા, એમાં સરસ્વતી ચંદ્ર જે બહુ જ સુંદર મજાનું એક આખું એક કૃતિ છે, બહુ જબરજસ્ત કૃતિ છે, અને ખૂબ જ વખણાયેલી કૃતિ છે, આપણા માટે ગર્વ લેવા જેવી વાત છે. અને એ પાત્ર હું ઓલવેઝ ઓપ્શનમાં છોડી દેતો હતો, આખું ચેપ્ટર જ ઓપ્શનમાં છોડી દેતો હતો. પણ અહીંયા જ્યારે ગુજરાતી ભાષા સાથે કનેક્ટ થવાનો વારો આવ્યો, કારણ કે ચંદ્રકાંત શાહે એટલી ઉમદા ભાષામાં એટલા બધા પાત્રો એને બહુ સુંદર રીતે એમણે વર્ણવ્યા હતા, અને બહુ જ સરસ રીતના લખાણ હતું એમનું. પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી હું ક્યાંય કનેક્ટ નહોતો થઈ શકતો. અને ત્યાં મને સનત વ્યાસ, જે મારા સિનિયર એક્ટર હતા, મારા અને કો એક્ટર હતા, ને મારા ફાધરનો રોલ કરતા હતા, એમની પાસેથી હું શીખ્યો કે ગુજરાતી ભાષા સાથે કઈ રીતે એને ઉચ્ચારણ એના હોવા જોઈએ, કઈ રીતે બોલવું જોઈએ. તો એ હું એમની પાસેથી શીખ્યો, અને એ ભાષા પ્રત્યેનો મારો જે પ્રેમ હતો એ પાત્ર દ્વારા મને એટલો બધો જીવવા મળ્યો, હું એટલો બધો કનેક્ટ થઈ ગયો મારી ભાષાની સાથે કે જે હું સ્કૂલમાં પણ કોઈ દિવસ નહોતો કનેક્ટ કરી શકતો. કારણ કે એનું મહત્વ શું છે, કેટલી સુંદરતા છે આપણી ભાષામાં, આપણા લિટરેચરમાં, પાત્રોને કેવી રીતના શું કામ આપણે બોલવા જોઈએ. અને સડનલી મને આપણી ભાષા બહુ જ મીઠી લાગવા માંડી, મને સાંભળવામાં પણ બહુ મીઠી લાગવા માંડી. હું ગુજરાતી ભાષામાં મારું બોલવામાં બહુ જ ખરાબ હતું. અને ત્યારે મને આ વસ્તુ જ્યારે હું શીખ્યો આ થિયેટર દ્વારા, જ્યારે હું આ પાત્ર ભજવતો હતો, ત્યારે જ્યારે શરૂઆત થઈ શીખવાની, તો ગુજરાતી ભાષા ઉપર પ્રભુત્વ ધીરે ધીરે આવવા માંડ્યું. એનું વાંચન એટલું બધું કરવા માંડ્યું. ગુજરાતી ભાષામાં આપણા કેટલા બધા સુંદર મજાના લેખકો છે, અને ખૂબ જ મોટા લેખકો છે, અને એટલી સુંદર કૃતિઓ એમણે લખી છે. એ બધું વાંચવાનું મારું શરૂઆત થઈ. તો ભાષા સાથે એક બહુ સરસ રીતના જોડાઈ ગયો, અને મારી ભાષા સુધરી. એક સરસ મજાનું જે બોલવાનું હતું એની અંદર, જે ઉચ્ચારણો હતા એ મારા સ્પષ્ટ થવા માંડ્યા. કઈ રીતે કરવું એ મને સનતભાઈ એની અંદર મને ખૂબ મદદ કરી હતી. અને એ બાદ સંગીત સાથે હું જોડાયો નાટકો દ્વારા. અને એ સ્પેશિયલી એ જે નાટક હતું એમાં મારે ગીતો ગાવાના હતા, લાઈવ ગાવાના હતા. અને એમાં વસ્તુ એવી થઈ કે સચિન સંઘવી, જે ખૂબ જ સરસ મજાના વ્યક્તિ છે અને ખૂબ સુંદર મજાના એ સંગીતકાર પણ છે, અને એમણે મને સંગીત કઈ રીતે ગાવું એ મને શીખ્યું એમણે. અને એક બહુ સરસ વસ્તુ થઈ કે લાઈફમાં એક વસ્તુ એવી શીખવા મળી કે સંગીતથી આ તમારા જીવનમાં કેટલો બધો પ્રભાવ પડી શકે છે. અને સંગીત દ્વારા, કારણ કે એ જે ગાવાનું હતું એમાં કેટલી બધી મહેનત લાગે છે, શું થાય છે, ઘણી બધી ટેકનિક્સ ખબર પડી એની અંદર, કે બ્રીધિંગ ટેકનિક શું હોય છે, જેમ ગાવું હોય છે, જેમ બહુ એક મોટા NSD ના કોઈ એક ટીચર હતા, એમણે એક વાત કહી હતી કે તમે જબ આપ
बोलो तो ऐसे बोलो जैसे आप गा रहे हो और आप गाओ तो ऐसे गाओ जैसे आप बोल रहे हो. તો આ એક સુંદર મજાની એક વસ્તુ મને આની અંદર શીખવા મળી છે. મારી લાઈફમાં એક રિધમ દરેક વસ્તુમાં એક રિધમ હોય છે. એને એક ઓલવેઝ એની એક શરૂઆત એની એક હોય છે, એક મિડલ પોર્શન હોય છે ને એક એનો અંત હોય છે. તો આ એક વસ્તુની અંદર એ વસ્તુ એક વણાઈ ગઈ લાઈફની અંદર કે દરેક વસ્તુની એક શરૂઆત હોય છે અને તમારે એને કરેક્ટ સુરથી શરૂઆત કરવાની હોય છે. તમે જીવનની અંદર પણ જ્યારે કંઈ પણ બોલતા હો છો તો તમારે એ દરેક વસ્તુનો એક સૂર હોય છે અને એ સૂર હંમેશા તમને એક જગ્યા પર લઈ જાય છે. તો એ મને સંગીત દ્વારા, મને ભાષા દ્વારા મને બહુ જ વસ્તુ મારી જીવનનો એક ભાગ બની ગયો અને ખૂબ મોટો ઇમ્પેક્ટ પડ્યો મારી લાઈફની અંદર કે મારી ભાષા સુધરી, મારી ભાષા સાથે જોડાવાનો મને મોકો મળ્યો આ નાટક દ્વારા અને આ પાત્ર દ્વારા. ત્યારબાદ મેં મારું એક અને યસ એની અંદર એક ખાસ એક વ્યક્તિનું નામ હું મેન્શન કરવા માંગીશ, વિકાસ કદમ, જે ખેલૈયા નાટકમાં હતા અને ખૂબ જ મોટું નામ છે છતાં પણ ખૂબ જ લો પ્રોફાઇલ રાખે છે અને મારા ખૂબ જ અંગત મિત્ર છે, જેમણે હિન્દી ફિલ્મ જગતમાં બહુ જ મોટું નામ કર્યું છે, વિકાસ કદમે. એ વ્યક્તિ એ હતું જેણે મને કેરેક્ટરો કઈ રીતે બનાવવા, પાત્રોની સાયકોલોજી કેવી રીતે સમજવી, આ વસ્તુ એ વ્યક્તિએ મને શીખવાડી. અને જ્યારે એ શીખવાડી એના પછી જ્યારે મેં પ્રયત્નો શરૂ કર્યા ત્યારે મારી લાઈફ ઉપર એટલો બધો ઇમ્પેક્ટ પડ્યો, કારણ કે મને ક્યાંક ને ક્યાંક કેરેક્ટરો જે હોય છે રિયલ લાઈફમાં હોય છે, હું વ્યક્તિઓને સમજવાનું મારી એક શક્તિ મારી ખીલી અને ખુલી. અને એ વસ્તુની અંદર એવું થયું કે મારી આસપાસના લોકો કેમ આવી રીતના જીવતા હોય છે, કેમ અમુક પાત્રો અમુક રીતે જ બિહેવ કરતા હોય છે, કેમ અમુક લોકો અમુક રીતે એ લોકોની લાઈફસ્ટાઈલ જીવવા માટે ટેવાયેલા હોય છે, કેમ અમુક લોકો સતત જીવનમાં આગળ વધતા હોય છે. એની પાછળના કારણો શું હોય છે, એ સાયકોલોજી જે મને એ વ્યક્તિએ સમજાવી અને એને આધારે એને કઈ રીતે સમજવી, આ વસ્તુ મારા માટે એટલી બધી મોટી મારી લાઈફમાં એટલો મોટો ભાગ ભજવી ગઈ કે જ્યારે અને જે હજુ ભજવી રહી છે કે મારે જ્યારે પણ મારા મિત્રો હોય છે કે મારા ઘરમાં મારા મા બાપ હોય કે મારી બેન કે મારા ભાઈઓ હોય છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ કદાચ હું પ્રોફેશનલ લાઈફની અંદર પણ હોઉં છું, તો આ એક વસ્તુ એટલી મોટી ઇમ્પેક્ટ પાડી કે મને માણસ તરીકે હું એક સ્ટેપ ઉપર ચડ્યો. મારામાં એક પાત્રોને સમજવાની જ્યારે શક્તિ આવવા માંડી, એની સાયકોલોજી સમજવાની આવવા માંડી, ત્યારે મારી અંદર એક પ્રકારની માણસાઈ જાગવા માંડી. જનરલી એવું થતું હોય છે કે આપણે લોકોને ઇગ્નોર કરી દેતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ ચાલ ને ભાઈ આ આમ જ છે, આ આવી રીતનો છે, આ નેગેટિવ જ છે. પણ ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે જ્યારે આ વસ્તુ મને સમજાઈ ત્યારે ખબર પડી કે લોકો જનરલી એવા નથી હોતા. જ્યારે નાટકની અંદર પણ આપણે હંમેશા બતાડીએ છીએ કે કોઈ એક વ્યક્તિ કંઈક ખરાબ કામ કરે છે તો પછી એનું પાછળનું એની વસ્તુ એને ભોગવવી પડે છે. એક અંત, એનું શરૂઆત હોય છે અને એક એનો અંત પણ હોય છે. तो यस, मैं इस बारे में बात कर रहा था कि किरदार किस तरह से हमें बनाने होते हैं और उसे बनाते वक्त हमें बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करना होता है. जैसे कि एक साइकोलॉजी होती है, तब जाके अब एक साइकोलॉजी को जब हम समझ लेते हैं तो साइकोलॉजी को समझने के बाद हमें उस कैरेक्टर को इम्बाइब करने में या तो उसको आत्मसात करने में हमें बड़ी आसानी हो जाती है क्योंकि हम उसकी साइकोलॉजी समझ लेते हैं. और यही चीज़ जो मैंने थिएटर में जो सीखी है वो चीज़ ऐसी हुई कि वो मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन गई. क्योंकि आज की तारीख में भी मुझे अगर किसी इंसान से बात करनी हो तो अगर वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो तो मुझे जब मैं उस इंसान के बारे में सोचता हूँ कि ये क्यों इस तरह से कर रहा है, क्यों ये गलतियाँ बार बार दोहरा रहा है, या क्यों ये इंसान सक्सेसफुल है, या ये इस प्रॉब्लम में है तो इसको या इस प्रॉब्लम से किस तरह से बाहर निकाला जाए, मैं उनको किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ. तो ये एक साइकोलॉजी जो मैंने यहाँ पर सीखी थिएटर के अंदर, तो वो मुझे अपनी रियल लाइफ में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट मेरे लाइफ पे पड़ा. और यहाँ से खिलैया के बाद में एक चीज़ ऐसी हुई, खिलैया एक मेरा प्ले था जहाँ पर मैं ये बेसिक्स सीखा मैं, और मुझे थिएटर के एक्टिंग के बेसिक्स मैंने सीखे. और उसके बाद ये हुआ कि मैं पहले से जो कई चीज़ों के अंदर इग्नोरेंस हुआ करता था मेरा, वो इग्नोरेंस मेरा चला गया. मैं ज़्यादा इंसान बनने लगा. जो हमेशा एक दिक्कत हमें कहीं ना कहीं आती है, लोग हमें कहते हैं कि चल इंसानियत मर चुकी है, तो इंसानियत मर इसलिए चुकी है क्योंकि हम खुद इंसान होना भूल चुके हैं. इंसानियत हम दिखाते नहीं हैं, अपने ही अंदर कहीं ना कहीं उलझे रहते हैं, अपने ईगो के साथ उलझे रहते हैं. तो
ये एक चीज ऐसी है कि जो मेरे लाइफ के साथ में ऐसी इस तरह से जुड़ गई है कि मुझे अपने आप को भी इंट्रोस्पेक्ट करने में मुझे इतनी आसानी हो गई है, क्योंकि मैं जब साइकोलॉजी पढ़ सकता हूँ दूसरे की, जबकि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ, और ये एक इतनी इंटरेस्टिंग चीज है कि जिसमें मैं अपने आप को भी पढ़ सकता हूँ और मैंने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं और मैं उसको किस तरह से सुधार सकता हूँ। ये एक इतना बड़ा मुझे एक इतनी बड़ी सीख मुझे ये मिली है थिएटर से। जब मैं ये मुझे कैरेक्टर बनाना मैं सीख गया, उसके बाद जो आज तक मेरे साथ में है, और मैं आज भी मेरा इंट्रोस्पेक्ट चलते रहता है और कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर इंसान बनाने की जो मेरी कोशिश हमेशा जारी रहती है, वो मेरी कहीं ना कहीं ये चीज मुझे आज भी मुझे काम लग रही है और मुझे आज भी काम में आ रही है। तो बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और खिलय के बाद की मेरी जो जर्नी रही उसमें किरदार किस तरह से मेरे लिए लाइफ में एक बड़ी चीज हुई कि मेरा हमेशा से एक्सपेरिमेंट करने का मेरा बहुत ही मेरा हमेशा मन होता है और मैं हमेशा मैं एक्सपेरिमेंट किरदारों के अंदर करता रहता हूँ, क्योंकि मेरी हमेशा ये मेरा एक मानना था और मेरा मानना है आज भी कि मैं जो भी काम करूँ तो कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ पर उसका इम्पैक्ट होना चाहिए। क्योंकि इस साइकोलॉजी को पढ़ने में कहीं ना कहीं मुझे एक चीज ये समझ में आई कि मैं अगर इस दुनिया में आया हूँ और मैं अगर मुझे अगर ये प्रोफेशन मुझे दिया गया है, डेस्टिनी ने मुझे दिया है, तो कहीं ना कहीं उसका लोगों के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। जैसे हर एक इंसान का होता है कि वो उसका जन्म किसी रीजन की वजह से हुआ है, तो मुझे कहीं ना कहीं एक मोटिव मुझे मिला कि मेरी आर्ट के थ्रू अगर मैं किसी की लाइफ में अगर इम्पैक्ट ला सकता हूँ, उसकी लाइफ में चेंज ला सकता हूँ और अगर मैं उसको पॉजिटिवली ला सकता हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानूंगा। और भगवान ने मुझे ये इतनी बड़ी चीज दी है कि इतना बड़ा मौका दिया है कि मैं एक ही लाइफ में करोड़ों लाइफ जी सकता हूँ। इतना बड़ा और इतना सुंदर मुझे मौका दिया है कि मैं लोगों की लाइफ की रूट्स तक जा सकता हूँ, उनके प्रॉब्लम्स को समझ सकता हूँ और कहीं ना कहीं वो समझने के बाद मुझे लगता है कि मेरे अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं, तो अपने प्रॉब्लम्स के भी सोल्यूशन मुझे मिल जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले ભૂમિકા ગૌરી, હેલો જીમિત ભાઈ, આઈ એમ ભૂમિકા ગૌરી ફ્રોમ રાજકોટ, ગુજરાત. હું પણ આર્ટિસ્ટ ફિલ્ડથી બિલોંગ કરું છું. મેં પણ ઘરે બધા પ્લે થિયેટર્સ કર્યા, ઘણા બધા થિયેટર્સ પ્લે કર્યા છે, બટ રાજકોટમાં એવી કોઈ સારી ડ્રામા સ્કૂલ કે થિયેટર સ્કૂલ નથી. ગુજરાતમાં એવા ઘણા બધા આર્ટિસ્ટ હશે કે જે ટેલેન્ટેડ છે, બટ એમને પ્રોપર ગાઈડલાઈન નથી મળતું. બધા જ આર્ટિસ્ટ અમદાવાદ કે મુંબઈ જઈ શકે પણ એ પોસિબલ નથી હોતું. સો ઇટ્સ અ રિક્વેસ્ટ ઓર યુ કેન સે ઇટ્સ અ સજેશન કે ગુજરાતની બિગ સિટીઝ લાઇક રાજકોટ જેવા સિટીઝમાં ડ્રામા સ્કૂલ, થિયેટર સ્કૂલ સ્ટાર્ટ થવી જોઈએ. આઈ થિંક યુ આર મોર કેપેબલ ટુ ડુ દેટ. ઇન્ડિકેટિવ, સો પ્લીઝ ડુ સમથિંગ ઇફ યુ કેન. ભૂમિકાબેન, હું ડેફિનેટલી અત્યારના હું એ પોઝિશનમાં નથી, બટ ડેફિનેટલી તમને જો એવું લાગે છે તો હું ડેફિનેટલી હું પ્રયત્ન કરીશ કે કંઈક ત્યાં આગળ થઈ શકે, એવી એક્ટિવિટી થઈ શકે. બટ આઈ એમ શ્યોર કે ત્યાં આગળ હેમુ ગઢવી જે હોલ છે ત્યાં આગળ ડેફિનેટલી અમુક એક્ટિવિટીઝ ત્યાં આગળ કંઈક ચાલે જ છે અને અમુક ફેસ્ટિવલ પણ થાય છે, તો એની સાથે જોડાઓ. અને ઘણી વખત એવું થાય છે કે ઘણા બધા લોકો દૂર દૂરથી ત્યાં આગળ એમને થિયેટર કરવાનો મોકો મળતો હોય છે કે વર્કશોપ કરવાનો મોકો મળતો હોય છે, તો એ લોકો જઈ શકે છે. ઉનાળાના વેકેશનમાં અમદાવાદમાં ઘણા બધા વર્કશોપ થતા હોય છે એક્ટિંગના, તો ડેફિનેટલી તમે એને ઇન્ટરનેટ ઉપર સર્ચ કરીને તમે ત્યાં જઈ શકો છો અને તમારું જે સપનું છે કે બીજા જે લોકોને કરવું છે એમને પણ તમે ગાइडलाइंस આપી શકો છો. સો યસ, કમિંગ बैक टू द पॉइंट, खेलैया के बाद मैंने जो एक किरदार किया वो मेरा पहला किरदार था जो मैंने अपने आप से बनाया, क्योंकि तब तक मुझे ये समझ नहीं थी कि मैं क्राफ्ट किसे कहते हैं, ग्राफ किसे कहते हैं, इमोशंस किस तरह से इमोट करने हैं, तो ये चीजें मुझे समझ में नहीं आती थी. और ये लगनगाड़ू चाले आड़ू एक प्ले था और उसमें मुझे एक किरदार करना था जो हैंडीकैप था, जिसके दोनों पैर नहीं थे. और ऐसा नहीं था कि वो बाय बर्थ ही उसके पैर नहीं थे, उसके साथ एक एक्सीडेंट होता है और उसके बाद में उसके दोनों पैर चले जाते हैं, तो वो इंसान क्रचेस पे ही चलते रहता है. तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक मौका भी था और एक चैलेंज भी था कि मुझे कुछ 4 सीन थे उस प्ले के अंदर, और चौथे सीन में मैं जब आता था स्टेज पर तब लोगों को पता चलता था कि मैं हैंडीकैप हूँ. तब तक मैं ऑफिस में ही बैठा रहता था, तो मेरे साथ में जो मेरी कलीग थी, जो मेरी दोस्त थी, उसके अंदर प्ले में जो किरदार प्ले कर रही थी, जो मेरे ऑफिस में मेरे साथ में काम कर रही थी, तो उसे भी ये चीज़ पता नहीं होती थी. और मैं जब जाता था स्टेज पर
तब जाके मुझे ये एक चैलेंज देना था कि मैं क्रचिस पर ही चलूं। तो मुझे ये साइकोलॉजी को भी स्टडी करना था कि और ये मेरी लाइफ का एक पहला किरदार था जो मेरे लिए जो मैं हमेशा देखते रहता था, टीवी में भी देखता था कि लोग हमेशा ये कहते हैं कि दे आर नॉट हैंडीकैप्ड, दे आर स्पेशल। और किसी भी तरह की अगर दिक्कत उनकी लाइफ में आती है तो वो कभी भी अपने जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको वो बीच में नहीं आड़े नहीं आने देते थे, और वो हमेशा अपने जो टारगेट्स होते थे, अपने जो सपने होते थे, उसको वो हमेशा पूरा करते थे। तो ये एक मेरे लिए बहुत ही बड़ी चैलेंज थी, और इसमें मजा मुझे ये आया कि मुझे उस साइकोलॉजी को समझने में जो एक मजा आया, और मेरी लाइफ का एक भाग यहाँ से शुरू हुआ कि वो एक मेरी लाइफ का और एक भाग बना, और वो इस तरह से मेरी लाइफ में जुड़ा कि लाइफ में मेरी लाइफ का एक मोटो हो गया कि एवरी प्रॉब्लम हैज अ वे आउट एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो अगर लाइफ के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो हम हमेशा अपनों से जो ऊपर होते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं, हमेशा हम उनके साथ में अपने आप को कंपेयर करते हैं, और ये लाइफ में हमेशा हर किसी के साथ में ये फेज आता ही है। तो हम जब इन लोगों को देखते हैं तो हमें अपनी प्रॉब्लम बहुत ही छोटी लगती है, और यही चीज मेरी लाइफ में जब मुझे ये किरदार मुझे परफॉर्म करना आया, मेरे 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 भाग आया ये, तब मैंने जब परफॉर्म किया तब मुझे पता चला कि आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। हम हमेशा रोते रहते हैं कि यार मेरे पास एक चीज ये नहीं है या मेरे पास ये नहीं है, लेकिन हम कभी ये नहीं देखते हैं कि भगवान ने हमें क्या दिया है, भगवान ने हमें क्यों इस चीज के लिए चुना है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपको कुछ सीखना होता है, कहीं ना कहीं आपको ये समझना होता है कि लाइफ गोज ऑन। आप एक चीज के ऊपर रोते नहीं रह सकते लाइफ टाइम, और अगर आप रोते रहेंगे तो आप जिंदगी भर वहीं के वहीं रहेंगे, आपका ग्रोथ अटक जाएगा, आप कभी लाइफ में चीजों को अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो ये एक कैरेक्टर था जहां पर मेरे दोनों पैर चले गए थे, और फिर भी मुझे अपनी जो दोस्त है उसको मुझे ये कन्विंस करना था कि उसकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, और जब मैं उसे ये चीज दिखाता हूँ कि मेरे दोनों पैर नहीं है और फिर भी मैं हंस सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में आई हुई हर एक चैलेंज को मैं फेस कर सकता हूँ। तो ये मेरे अंदर आज भी ये एक स्पिरिट इतनी जिंदा है मेरे अंदर कि मैं भी कहीं ना कहीं डाउन होता हूँ, कई बार फेलियर्स मिलती है, क्योंकि हमें हर प्रोजेक्ट के साथ अपने आप को प्रूव करना होता है। अच्छे किरदार को हम जस्टिफाई कर सकें उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है। तो ये एक चीज मेरे लिए पहला सक्सेसफुल मेरा एक कैरेक्टर मेरी लाइफ में एक ऐसा आया कि जहां पर मैं उसको प्रूव कर पाया, और मुझे दुगनी खुशी इस बात की थी कि मैं कहीं ना कहीं अब एक पहला किरदार मेरी लाइफ का मैं बना पाया थिएटर के अंदर, सक्सेसफुली उसको बना पाया। और दूसरी चीज कि पहली बार एक किरदार से मैं ये एक चीज सीखा जो मेरा खुद का बनाया हुआ था, जो एक ऑफ कोर्स एक लेखक ने इसे लिखा हुआ था, उसे इमेजिन किया हुआ था, डायरेक्टर ने उसको डायरेक्ट किया हुआ था, लेकिन उस चीज को उस इमोशंस को मेरी लाइफ का मैंने एक हिस्सा बना लिया कि लाइफ में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आए, नेवर 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 उस चीज को आप कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, आप उसके ऊपर हावी हो जाइए। तो ये मेरी लाइफ की पहली मुझे एक सीख मिली, और उसके बाद में मेरा जो कॉन्फिडेंस था, मेरा जो फाइटिंग स्पिरिट थी, मेरे आगे बढ़ने की जो मेरे अंदर जो एक चाह थी वो और बढ़ गई। मेरी जो भूख थी कि एक एज एन एक्टर मैं अपने किरदार को मैं और नए नए किरदार को ढूंढूं, उसकी साइकोलॉजी को स्टडी करूं, रिसर्च करूं और नए नए किरदार बनाते रहूं। तो ये मेरी एक जिसे कह सकते हैं कि मेरी एक जो भूख थी वो और बढ़ी। लगन काडू चाले आडू उसके बाद में मेरे पास एक चीज आई कि मैं और इंसान बना। हर किरदार जितने भी मैं करते गया हूँ या मैं अभी भी कर रहा हूँ, तो मैं और इंसान बनते जाता हूँ, मैं और इंसानियत को समझते जाता हूँ, साइकोलॉजी को, इमोशंस को समझते जाता हूँ। तो इस चीज को समझते समझते आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे पास हमेशा इतने बढ़िया मेरे पास किरदार आए हैं हमेशा। और उसमें मेरे पास एक प्ले आया चौखट रानी चार गुलाम। ये एक ऐसा प्ले था कि जिसमें मुझे एक किरदार करना था कि जो बंदा स्टैमर करता है, मतलब हकलाता है बोलते वक्त, और ये एक बड़ा ही चैलेंजिंग कैरेक्टर था क्योंकि कॉमेडी करनी थी, और एक हम हमेशा लोगों को देखते हैं, कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भी कहीं ना कहीं स्टैमर करते हैं जैसे लोग देखते हैं, और वो अपनी सेल्फ एस्टीम बहुत ही लो हो जाती है उनकी। लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाते हैं, बच्चे स्कूल में उनका मजाक उड़ाते हैं, माँ बाप भी उनको समझाते हैं, बट बहरहाल वो बच्चे होते हैं इसलिए वो हमेशा मजाक उड़ाते हैं। और लेकिन वो
जो बच्चा होता है उसे किस और किन किन चीजों से गुजरना पड़ता है, अपना कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, और उसे उसे ऐसा लगने लगता है कि मैं बहुत ही छोटा हूँ, मैं इन लोगों सा नहीं हूँ। कहीं ना कहीं उसकी हिम्मत टूट जाती है। और जब मैंने ये चीज, मैंने खुद ने जब ये किरदार मैंने किया, तब मुझे समझ में आया कि ये क्यों होता है और इसे किस तरह से सुधार सकते हैं। तो वो किरदार लोगों को बहुत ही पसंद आया, जो आज भी YouTube पर वो प्ले है, लोग देखते हैं, मुझे मैसेज भी आते हैं कि आपने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है। लेकिन जब मैं इस साइकोलॉजी को समझ रहा था, इस कैरेक्टर को समझने के लिए उसे बना रहा था, उस वक्त मुझे समझ में आया कि ये कितना पेनफुल प्रोसेस होता है। जो खुद बंदा एक स्टैमर करता है और उसके माँ बाप कई बार उनको हेल्प नहीं कर पाते हैं, उनके दोस्त भी उनको हेल्प नहीं कर पाते हैं, उनके भाई बहन उनको हेल्प नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बच्चे का उसका कॉन्फिडेंस, उसका मनोबल टूट जाता है और उसको ये लगता है कि वो लाइफ टाइम इसी चीज के साथ जिएगा। उसे ये लगता है कि उसे कभी लड़की नहीं मिलेगी, क्योंकि लड़की भी उसके सामने देखकर हंस देती है, या कुछ भी हो सकता है, वो एक मजाक का जरिया बन जाता है, हंसी का एक जरिया बन जाता है। जो मुझे एक चीज समझ में आई, और उसके बाद में मैं काफी ऐसे बच्चों से मिला कि जो कई बार स्टैमर करते हैं। मैं कई बार ऐसा भी होता था कि मैं मैकडोनल्ड्स में अगर मैं कहीं गया हूँ या कोई होटल में मैं गया हूँ, तो कई बार ऐसा होता था कि वो बेचारे, उनकी आंखों में मैं पढ़ सकता था कि वो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस बड़ा ही लो है, वो उनकी सेल्फ एस्टीम बड़ी लो है। तो मैं हमेशा उनके साथ में एक स्माइल देकर उनको मैं उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ाने की ट्राई करता था। दैट डोंट वरी, यू आर ट्राइंग टू से दिस, फाइन, सो यू कैन डू दिस, आप उसको लिख कर भी दे सकते हो। तो मैं, और बहुत सारे मुझे रास्ते मिले, क्योंकि प्रॉब्लम के साथ में हमेशा रास्ते आते ही हैं, लेकिन अगर हम उनकी तरफ अगर देखें तो ही हमें उस चीज के बारे में चीजें समझ आती है, अदरवाइज हम नहीं देख पाते हैं। और ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो हमेशा वो प्रॉब्लम की तरफ ही देखता है, वो कभी सोल्यूशन की तरफ नहीं देखता है, लेकिन भगवान हमेशा प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भेजता ही है। सो आई गेस कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसा लगा कि मैं किसी को हेल्प कर पाया, क्योंकि मैं उस साइकोलॉजी को मैं समझ पाया। और लाइफ के अंदर और कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि लोग बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो बहुत ही छोटे, खुद को छोटा महसूस करेंगे, लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। तो ये एक चीज मेरे अंदर आई, जो मैंने उसको परफॉर्म किया, और उसके बाद में मुझे लगा कि मुझे ऐसे बहुत सारे किरदार करने चाहिए। तो मेरी लाइफ का एक मेरा मोटो बन गया कि चाहे मुझे कोई भी किरदार मिलता था, मैं उसे हमेशा एक चैलेंज बना देता था। अगर वो सिंप्लीफाइड है तो मेरा हमेशा एक डायरेक्टर के साथ या राइटर के साथ हमेशा मेरी एक नोकझोंक होती रहती थी कि लेट्स मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, लेट्स मेक इट टफर। तो अगर एक ऐसा किरदार अगर मैं बनाता हूँ तो मुझे खुद को भी मजा आएगा। और ये एक कैरेक्टर ऐसा था जिसका नाम था तनसुक तोतड़ो, और क्योंकि वो हकलाता था, और इसकी वजह से उसको वो कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता था, वो हमेशा मजाक का जरिया बनता था। तो ये एक चीज मेरी लाइफ में बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट इस किरदार ने बड़ी एक छाप छोड़ी है मेरी लाइफ के अंदर। उसके बाद में मेरे पास एक एक्सपेरिमेंटल प्ले आया जिसका नाम था लव इन बॉम्बे, सॉरी पहले बॉम्बे था, तो वो उस जमाने की स्टोरी थी। और कहीं ना कहीं एक चीज उसमें एक बैकड्रॉप ये था कि एक गार्डन है, और गार्डन के आसपास ही सारी लाइफ, बहुत सारे किरदारों की लाइफ उस गार्डन से जुड़ी हुई है। और उसमें एक किरदार मेरे पास ऐसा आया जिसका नाम था पीटर भाई, जो एक पंटर था, और पंटर से वो भाई बनता है, और भाई के बाद वो पॉलिटिक्स में जाता है। तो ऐसे बच्चों को जब हम देखते हैं, सिग्नल पर देखते हैं, कहीं झोपड़पट्टी में देखते हैं कि जिनको एजुकेशन नहीं मिला है, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली है, तो ऐसे लोगों का भविष्य क्या होता है, जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, लेकिन फिर भी वो बच्चे कहीं ना कहीं दूसरे ही प्रोफेशन में चले जाते हैं, जो और अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। और बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको जाकर पढ़ाने की कोशिश करते हैं, उन्हें सही राह दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये जब मैंने कैरेक्टर प्ले किया, अगेन इट वाज अ कॉमेडी, बिकॉज लोगों को हमेशा कॉमेडी ही पसंद आती है। और कोई भी बात अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करनी हो या उनको समझानी हो, तो आपको उसे हमेशा कॉमेडी में रैप करके भेजना पड़ता है। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे हमेशा कॉमेडी मिला है और साथ में सीरियस भी मिला है, और दोनों का ब्लेंड हुआ है हमेशा। तो एक पीटर भाई का जो कैरेक्टर था, उसमें बड़ा ही उसकी लाइफ की एक जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि वो इस तरह से गार्डन से शुरू होता है, पॉकेट मारता है, फिर कहीं चोरियां उसने की है,
किसी को शायद मारा भी है उसने पैसों के लिए, और उसके बाद में वो कैसे भाई, एक लोकल भाई बना, लोकल भाई से किस तरह से वो एक पॉलिटिक्स तक पहुंचा, एक लोकल भाई से एक स्टेट का भाई बन गया। और उसकी शादी एक लड़की से होती है। नाउ ही इज वेल सेटल्ड, और उसके बाद में उसको पता चलता है बहुत सालों के बाद कि उसकी वाइफ जो थी वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, और उसे प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस से उसे बचाया गया था, और उसे इज्जत वाली जिंदगी दी गई थी। और वहां पर इस पीटर भाई की शादी उस लड़की से होती है। और जब उसे पता चलता है कि अच्छा मेरी लाइफ में मेरी शादी प्रोस्टिट्यूट से हुई, और उसके बाद उसका क्या रिएक्शन होता है कि उसे पहले तो बहुत ही बुरा लगता है, गुस्सा भी आता है, और वेरी नेक्स्ट मोमेंट वो इंसान कहता है कि कोई नहीं, होता है लाइफ में, ऐसी चीजें हो जाती है, लेट्स गो, जिंदगी फिर से हम लोग शुरू करते हैं। तू भी कहीं ना कहीं से आई है, मैं भी कहीं ना कहीं से आया हूँ, लेकिन प्यार है तो चल लाइफ फिर से शुरू करते हैं हम लोग। तो ये एक ऐसी चीज मुझे समझ में आई कि लाइफ में हम कई बार ऐसा होता है कि लोगों को माफ नहीं करते हैं, हम उस चीज को पकड़ के रखते हैं, और उसी चीज को हम लोग अपनी लाइफ का एक बदले की भावना के साथ हम लोग उस जहर को इतना जिंदा रखते हैं अपने अंदर कि हमारी लाइफ पूरी डेडिकेटेड हो जाती है उस जहर को जिंदा रखने में, उस बदले की भावना को जो जिंदा रखने में, जो एक चीज हमारी उसके साथ में जुड़ जाती है इतनी स्ट्रांगली, और फिर हम उसे, जैसे एक हेरिडिटरी होती है, लोग धन दौलत देते हैं अपने बच्चों को, कोई एजुकेशन देता है, कोई संस्कार देता है, हम उनको ये बदले की भावना दे देते हैं कि बेटा आपको भी ऐसा ही करना है। तो वो एक चीज मुझे समझ में आई कि बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं लाइफ में, बहुत सारी चीजें होती है, और वो कहीं ना कहीं कुछ वजह से होती है, और आपकी डेस्टिनी में वो चीज लिखी हुई थी, इसीलिए आपके साथ हुई। तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि जैसे ही आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं उसकी इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, या वो फिजल आउट हो जाती है, अपनी लाइफ से हमेशा के लिए निकल जाती है। और जितना बड़ा इंसिडेंस आपकी लाइफ में होता है, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसका दुख भी कम हो जाता है और आप उससे ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये एक सीख मुझे इसमें मिली। एक सीख ये भी मिली कि कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं तो वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने हमेशा कहीं ना जितनी मेरी ताकत थी वो हिसाब से मैंने उनको कहीं ना कहीं हेल्प करने की कोशिश भी की, और अच्छा भी लगा कि एटलीस्ट चलिए मैं कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट में ला सका। थोड़ा माहौल थोड़ा हल्का करते हैं। तो मेरी लाइफ में ऐसा हुआ था कि मेरा पहला प्ले, जैसे मैंने कहा जलसा करो जयंतीलाल, तो मैं फर्स्ट टाइम अमेरिका गया था और मुझे ये पता नहीं था कि कनेक्टिंग फ्लाइट कैसे लेनी है। और ये चीज़ ऐसी हुई थी कि हम 9/11 जो एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ था उसके बाद हम गए थे, और सब हम लोग यंगस्टर्स थे, सब अनमैरिड थे, और 7-8 यंगस्टर्स हम लोग प्ले में गए थे साथ में वहाँ पर। और उसमें ऐसा था कि हमारे प्ले में एक साइकिल थी, पुरानी एटलस की साइकिल थी, तो वो भी हम लोग यहाँ से साथ में लेके गए थे, और मैंने वो जिम्मा उठाया था कि मैं इस साइकिल को डिसमेंटल करूंगा हर शो पे और असेंबल करूंगा, क्योंकि वो जो दिलीप जी का जो किरदार था उसकी वो रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि उसकी वो ऑथेंटिसिटी तभी आ सकती थी जब उसकी साइकिल वो होती। तो ये जिम्मा मैंने अपने सर लिया था। और हुआ ऐसा कि एक एयरपोर्ट पर हमारी पहली कनेक्टिंग फ्लाइट थी, और उसमें जो आधी साइकिल, क्योंकि उसको काट के हम लोग ले गए थे, तो आधी साइकिल एक दोस्त के नाम पर थी, दूसरी मेरे नाम पर थी, और उसमें मेरी फ्लाइट मिस हो गई कुछ रीजन की वजह से। वहां पर सिक्योरिटी के रीजन खड़े हो गए थे, और मेरी पहली कनेक्टिंग फ्लाइट थी और वो छूट गई। और उसमें ऐसा हुआ कि मेरी टीम चली गई है, आधी साइकिल चली गई और आधी साइकिल मेरे पास थी। और मुझे ये चीज़ पता नहीं थी कि भैया मुझे अब कनेक्टिंग फ्लाइट भी कैसे लेनी है और मुझे पहुंचना भी कैसे है वहाँ पर। तो एक बड़ी ही थ्रिल वाली मेरा वो एक्सपीरियंस था। मैं जैसे तैसे करके पहुंचा, और आधी साइकिल, जैसे ऐसा हुआ कि मैं जब LA पहुंचा तो मैं अकेला था, और LA पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि मेरी जो साइकिल जो है, वो आधी साइकिल है, वो नेक्स्ट फ्लाइट में आने वाली है। और भगवान का शुक्र था, मैं शुक्रगुजार हूँ कि उस वक्त ऐसा हुआ कि मेरी जो टीम थी तो वो ऑलरेडी एयरपोर्ट में बाहर गाड़ी में बैठकर निकलने वाली थी, और मैं भागकर उनके साथ सामने गया, और मुझे वो वापस वो लोग मिल गए, और मेरे लिए ऐसा था कि ओके फाइन, चलिए मैं आ गया हूँ, और साइकिल भी मिल गई और शो भी हुआ। सो यस,
एक बड़ा ही थ्रिलिंग वाला एक्सपीरियंस था मेरे लिए, डर भी गया था लेकिन मज़ेदार भी था, जो आज भी याद है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। और इन इंडिया इज योर फेवरेट ऑडिटोरियम? आई गेस फेवरेट तो बहुत सारे हैं यार, क्योंकि हर एक चीज़ के साथ यादें बड़ी जुड़ी हुई है। आई वुड से भाईदास हॉल, जो अनफॉर्चुनेटली अब नहीं रहा हमारे पास, तो वो एक बड़ा ही ऐसा लगा है कि कोई अपना चला गया ऐसा लगा। तो भाईदास हॉल, तेजपाल हॉल, पृथ्वी थिएटर और एनसीपीए, तो ये बड़े ही मज़ेदार थिएटर हैं जो जिनके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। तो यस, दीज आर द थिंग्स। जिमित भाई, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद परेश रावल सर इन किशन वर्सेस कन्हैया? ओह, इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। लाइक आई सेड कि मेरा जब मैं पहली बार मैं जब थिएटर में था, मतलब थिएटर में नहीं आया था, मैं इंटर कॉलेजिएट में मैंने प्ले किया था। मेरा पहला प्ले था चालान, और उस वक्त कुछ हमारे पास थिएटर, हमारे कॉलेज में हमारा जो हॉल था वो कोई डांस के जो ग्रुप थे वो लोग रिहर्सल कर रहे थे। तो मैंने जिंदगी में पहली बार बैक स्टेज कैसा होता है वो मैंने देखा जब मैं भाईदास हॉल में गया, क्योंकि हमारी वहाँ पर रन थ्रू होने वाली थी। और उस वक्त ऐसा हुआ कि रन थ्रू हुआ, मैंने स्टेज पर पैर कदम रखा, मेरा पहला भाईदास हॉल, दैट वाज माय फर्स्ट। जैसे नील आर्मस्ट्रांग ने मून पे रखा था, मेरे लिए भाईदास हॉल था। और वहाँ पर ऐसा हुआ कि सब लोग निकल गए और मैंने परेश जी का नाम बड़ा सुना था। आई वाज वेरी प्राउड ऑफ हिम कि एक गुजराती एक बंदा है जो बॉलीवुड में पहुंचा है और अपना नाम किया है। तो मुझे पता नहीं था कि मैं कभी एक्टिंग फील्ड में आऊँगा, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मुझे स्टेज फियर इतना था। और मेरी सारी टीम निकल गई, उसके बाद में मैं स्टेज पर खड़ा था और मैंने ऑडियंस में इस तरह से उंगली करके मैंने कहा कि एक दिन मैं परेश रावल के साथ काम करूंगा। और उसके बाद तो मैं चीज़ें भूल गया था, लेकिन कहीं भगवान ने उस चीज़ को सुन लिया। 2000 में मैं थिएटर में मेरी एंट्री हुई जलसा करो जयंतीलाल से, और 2010 में परेश जी ने मुझे कॉल किया, क्योंकि तब तक मैंने जो काम किए थे, जो प्लेस मैंने किए थे वो उन्होंने देखे, मेरा काम उनको बहुत ही अच्छा लगा, और उन्होंने मुझे किशन वर्सेस कन्हैया में कृष्ण का रोल ऑफर किया। सो इट वाज अ वंडरफुल, और एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि आपने सपना देखा है, आपने कहीं बोला हुआ है, और सडनली वो चीज़ कुदरत आपको आकर देती है। तो मेरे लिए वो एक ऐसी गिफ्ट थी भगवान की तरफ से, रंग देवता की तरफ से ऐसी गिफ्ट थी कि जो मैं आज तक भुला नहीं पाया, और आज तक मेरा उनके साथ एसोसिएशन है। एक इंस्टीट्यूट है परेश जी कि जिनके पास से इतना कुछ सीखने को मिला, और आज भी हम लोग सीख रहे हैं। और इतने डाउन टू अर्थ वो इंसान है कि इतने बड़े लेवल पर पहुंचने के बाद भी वो इंसान आज भी हमें सीखने के लिए हमेशा रेडी है। वो अपने को आर्टिस्ट, कई बार उन्होंने मुझसे पूछा है कि ये लाइन तुझे कैसी लग रही है, ये बराबर मैं बोल रहा हूँ, ये साउंड बराबर हो रहा है। तो वो चीज़ मुझे सीखने को मिली कि आप हमेशा, आपको स्टूडेंट ही रहना है। आपको कभी आप जिस दिन प्रोफेसर बन गए कि ओके आप प्रिंसिपल बन गए, तो समझ लो कि आपका भैया अब आपका फुल स्टॉप बहुत नज़दीक है। तो आई गेस मैं वो एक चीज़ सीखा उनके पास से, एंड इट्स वंडरफुल। ही इज अ जैम ऑफ अ पर्सन, और उनके पास से इतनी चीज़ें सीखने को मिली है, कि मतलब मैं शायद मेरा ये सेशन कम पड़ेगा, मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। राजेश वोरा, व्हाट इज अ डिफिकल्ट थिंग फॉर यू टू प्ले इन अ रोल इन फिल्म और ऑन स्टेज? आई गेस सिंपल रोल इज डिफिकल्ट फॉर मी, राजेश जी, क्योंकि मुझे सिंपल चीज़ों में मज़ा नहीं आता। जब तक मेरे पास चैलेंज नहीं आती है तो मुझे ज़रा मज़ा नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव नॉट फ्लेक्स्ड माय मसल्स। तो यहाँ पर ज़रा एक चैलेंज होती है तो बड़ा मज़ा आता है कि यार हर बार एक ज़ीरो से शुरुआत करने में भी मज़ा आता है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई मुझे सिंपल दे देता है तो मेरे लिए वो ज़रा एक दिक्कत हो जाती है। और मेरे लिए बस वही चीज़ है, तो मैं हर एक सिंपल चीज़ को डिफिकल्ट बना देता हूँ और उसे ट्राई करता हूँ कि मैं अब इस डिफिकल्ट रोल को, इस कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर को मैं कितना सिंप्लीफाइड वे में परफॉर्म करूँ। तो ये मेरी हमेशा एक ट्राई रहती है, तो वो मैं हमेशा करते रहता हूँ। सो या लेट्स मूव ऑन। लव इन मुंबई के बाद मेरे पास हिंदी प्ले आया और वो था हम ले गए तुम रह गए, और उसमें जो मराठी में काफ़ी बड़ा हिट था भरत जाधव, गुजराती में शर्मन जोशी, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय बोथ एक्टर्स। और उसके बाद मुझे मौका मिला कि मैं हिंदी में जावेद जाफरी जैसे एक
मल्टी टैलेंटेड एक एक्टर्स के साथ में मुझे काम करने का वो मुझे मौका मिला, उस किरदार को प्ले करने का मौका मिला। और वो किरदार था एक शराबी का, और शराबी का किरदार वो भी ऐसा था कि जो एक देसी दारू जो बंदा पीता है उसका मुझे किरदार परफॉर्म करना था। और मेरे लिए ये था कि मैंने कभी शराब पी नहीं थी, तो ये कैसा होता है, पीने के बाद आदमी क्यों सीधा खड़ा नहीं रह सकता और क्या होता है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज आई थी। तो उसमें मुझे मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया। मैं देसी दारू के ठर्रे के बाहर जाके मैं हमेशा देखता था दूर से कि लोग अंदर जाते तब कैसे होते हैं, बाहर आते हैं तब कैसे होते हैं, और ये लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं जब वो सीधे भी खड़े नहीं रह सकते हैं, तब उनके दिमाग में क्या चीजें चलती हैं। तो ये चीज समझ में आई कि इंसान शराब इसलिए पीता है क्योंकि वो इतना स्ट्रेस में होता है, और स्ट्रेस में होने के बाद में उससे कम करने के लिए वो इंसान, उस चीजों को बाहर लाने के लिए वो इंसान शराब पीता है, और उसके बाद में वो बहुत सारी चीजें अपनी ही खराब कर देता है। तो अगेन ये भी एक कॉमेडी प्ले था, और एक ऐसा था कि एक इंसान की रगों में अब शराब, खून नहीं शराब ही दौड़ रहा है, उस हद तक वो इंसान शराब पीते रहता है, पानी की तरह शराब पीता है। तो ऐसा किरदार कैसा, उसकी साइकोलॉजी क्या होगी, क्या होगा। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो आप हमेशा ये होता है कि हम कहीं ना कहीं कुछ जो व्यसन होते हैं उसकी तरफ हम दौड़ने लगते हैं। हम कहीं ना कहीं शराब पीने लगते हैं, या सिगरेट पीने लगते हैं, या खैनी खाने लगते हैं, तंबाकू खाने लगते हैं। तो इन चीज़ों से हमें कहीं ना कहीं बचना चाहिए, क्योंकि ये एक चीज़ ऐसी होती है कि जो हमारे लिए और प्रॉब्लम खड़ी कर देती है, हमारे स्ट्रेस को कभी कम नहीं करती, टेम्पररी हमें ये फील करवाती है कि ये चीज़ हो सकती है। तो यहाँ से इस किरदार से मुझे एक सीख मिली कि अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाओ, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो उस प्रॉब्लम को हमेशा देखो, उसे समझो कि ये प्रॉब्लम आपके पास क्यों आई है। आप हमेशा रिएक्ट कर लेते हैं, मैं भी रिएक्ट करता था, और यहाँ पर मुझे एक चीज समझ में आई कि मुझे जब भी कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन आती है तो उसमें अपने आप को कितना काम डाउन रखना है, किस तरह से मुझे वो काम करना है। और दुनिया में मैं पहला इंसान नहीं हूँ कि जिसे स्ट्रेस आया है, जिसे कोई प्रॉब्लम आई है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और पर उस चीज को डालूं, या किसी और के ऊपर लैश आउट कर दूं, या किसी और को चांटा मार दूं, या उसे गाली गलौज कर दूं। नहीं, मुझे ये चीज नहीं करनी है। तो इन किरदारों से मुझे ये सीख मिली कि मुझे ये चीजें कभी नहीं करनी है लाइफ में, और अगर मैं ये चीजें करता हूं तो मुझे उस चीज का दुख होना चाहिए अपने आप पर, क्योंकि मुझे अपना एक इंसान, बतौर एक इंसान मुझे अपना एक स्टैंडर्ड एक बनाना है कि ये इंसान कितना भी स्ट्रेस में होता है तो ये कभी भी अपने काम को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कभी किसी के साथ गाली गलौज नहीं करता। और अगर हो भी गई है, क्योंकि गलती हमेशा हर एक एक्टर भी है तो वो भी एक इंसान है, तो कहीं ना कहीं वो गलती होती है, तो उस गलती को आपको सुधारने का हमेशा मौका मिलता है, तो उस गलती को सुधार लीजिए। तो लेकिन गलती होती है, उसके पहले भी आपके पास एक वक्त होता है गलती ना करने का। तो उसके लिए अगर आपका दिमाग अगर सही तरह से अगर आपके साथ में है, अगर आपका उसके ऊपर कंट्रोल है, तो मेरे ख्याल से आप बहुत सारी चीजों को होने से बचा लेते हैं। तो ये चीज समझ में आई कि हर चीज का सोल्यूशन ये नहीं होता है कि आप शराब पिए या आप किसी बुरी आदतों के साथ जुड़ जाए, नहीं, ये चीज कभी नहीं होती। तो ये चीज मुझे सीखने को मिली अपने इस किरदार से। और शराब के नशे में आप कहीं ना कहीं चोरी करने लगते हैं, तो ये भी ऐसा होता है कि पैसों के लालच में वो किसी दूसरे इंसान का बुरी तरह से उसको किसी एक ऐसी सिचुएशन में डाल देता है, और उसमें से उसको ये एक लालसा होती है कि उसे पैसे मिलेंगे, और ये बहुत ही बुरी चीज थी, तो जिसका अंत भी बुरा ही होता है। तो ये चीज मुझे समझ में आई कि आपके पास कितना भी आपने बुरी शुरुआत आपने चाहे की हो, लेकिन आपके पास भगवान हमेशा आपको मौका देता है उसे सुधारने का, जो हमेशा टफ होता है। तो कोई भी चीज शुरू करने से पहले उसको एक बार सोच लीजिए, उसके बाद में कीजिए। तो एक चीज मुझे समझ में आई, जिमित भाई, यू हैव वर्कड विद लेजेंड ऑफ थिएटर एंड फिल्म्स एक्टर, एनी स्पेसिफिक थिंग જે તમે કોઈ એક્ટર પાસેથી શીખ્યા which is a life lesson for you, please share with our audience for sure. Kunal, I am very fortunate कि मैं हमेशा मुझे लेजेंड्स के साथ ही मुझे काम करने का मौका मिला। शायद मैंने भगवान से हमेशा यही मांगा है कि मुझे टफ चीजें दी जाए, और मेरा हमेशा और हमेशा ये होता है कि जब आप किसी लेजेंड के साथ काम करते हैं तो आपको प्रूव करना होता है, आपने जो आपकी जो टैलेंट है उसे आपको प्रूव करना होता है, और मुझे हमेशा भगवान ये मौका देता है।
जो आप भगवान के पास मांगते हो तो भगवान आपको देता है कि बेटा चल अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो दिलीप जी डिसिप्लिन सीखा, परेश जी को मिला तो उनके पास से बहुत बहुत सारी चीजों को सीखा कि क्राफ्ट होता है तो क्राफ्ट बिना दिखाए आपको किस तरह से उसको नेचुरली परफॉर्म करना है। कि जैसे मैंने कहा कि सनत जी से मैंने सीखा, डिक्शन के बारे में सीखा, लैंग्वेज के बारे में सीखा, किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करना है वो मैंने सीखा। सिद्धार्थ जी के साथ मैंने काम किया तो किस तरह से आपको लाइंस को किस तरह से करेक्ट पंक्चुएशन में आपको बोलना है, किस तरह से आप एक सिंपल लाइन को भी एक ह्यूमरस लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से जैसे दिलीप जी से मैंने सीखा कि बाद में मैंने सीखा जब मैंने उनको ऑब्जर्व किया इन सारी चीज इतने सालों के बाद में कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं और बिना बोले एक्सप्रेशन से आप लोगों को किस तरह से हंसा सकते हैं या अपनी जो बात है उसको किस तरह से कन्वे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने सीखी और मैं आगे कुणाल जी मैं उस चीज को बताऊंगा। जैसे मैंने कहा कि मैं बेवड़े का मैंने रोल किया, उसमें जावेद जी के साथ काम किया, तो आप अलग अलग किरदार उनकी जो रेंज है जावेद जाफरी जी की वो बहुत ही बढ़िया है। इज अ मास्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिस तरह से वो कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं और ऐसे कैरेक्टर वो लेकर आते हैं, जैसे आपको बैंड्रा की गली में मिलेंगे कोई कृष्ण किरदार लेकर आए या किसी मौलवी का कैरेक्टर लेकर आए या भिंडी बाजार का कोई कैरेक्टर लेकर आए या टाउन का कोई बड़ा बिजनेसमैन है उसको लेकर आए या कोई एक गीक है या कोई एक म्यूजिक में रिलेटेड कोई बंदा है, गोवा का एक कैरेक्टर है, साउथ का कोई कैरेक्टर है, पंजाबी कैरेक्टर है, तो उनका जो ऑब्जर्वेशन जो है दैट इज ब्रिलियंट, दैट इज माइंड ब्लोइंग। तो वो जावेद जी के पास से मैंने सीखा कि आप किस तरह से ऑब्जर्वेशन आप जितना बढ़ाते हो वो आपको एक चीज सीखने को मिलती है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। परेश जी से जैसे मैंने सीखा कि आपको रीडिंग इज अ मस्ट, वो सेम चीज मैंने सिद्धार्थ जी से भी सीखी कि जितना आप पढ़ते हैं उतना आपको लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में आपको पता चलता है कि दुनिया में और क्या क्या चीजें हो रही है, किस तरह के किरदार हो सकते हैं जो आपको रियल लाइफ में कई बार नहीं मिलते हैं लेकिन आपको कई बार किताबों में मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने सीखी है। ललित सिंह जी कह रहे हैं कि बहुत सही बात, सिंपल कैरेक्टर को उल्लेखनीय बना पाना बहुत ही कठिन होता है। एक उच्च कोटि का अभिनेता ही इसे उल्लेखनीय बना पाता है। हम तभी अच्छे अभिनेता हो सकते हैं जब साधारण पात्र को भी दर्शकों के लिए स्मरणीय बना पावे। जैसे मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन, अरे मोहन राकेश जी ब्रिलियंट राइटर। विमोल और कालिदास के पात्र में इतनी संभावनाएं हैं कि साधारण अभिनेता भी कुछ कर लेता है, परंतु निक्षेप नामक साधारण पात्र को यादगार बना पाना सबके बस की बात नहीं होती। एब्सोल्युटली सही बात कही आपने ललित सिंह जी, मैं आपके साथ डेफिनेटली अग्री होता हूँ। वेल, तो आगे बढ़ते हैं और उसके बाद एक प्ले मैंने किया जिसका जो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बना था और एक इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में बना कि मैं थिएटर में एक अच्छे एक्टर, बतौर एक अच्छे एक्टर में जाना गया और उसका नाम था बाय मारी बाउंड्री। और ये जो प्ले था वो अगेन एक लेजेंड के साथ मुझे करने का मौका मिला। उनका नाम था श्री लेट पद्मा रानी जी, जो एक बहुत ही बड़ा नाम था थिएटर में और आज भी है, भले वो हमारे साथ नहीं है इस वक्त, लेकिन उनके जो प्लेज रहे हैं वो हमेशा सुपर हिट ही रहे हैं और मैं भगवान का बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उनके साथ उनके सामने परफॉर्म करने का मौका मिला। और इसमें जो कैरेक्टर था कि एक अमेरिका में बॉर्न एंड ब्रॉट अप एक बंदा है, पटेल फैमिली का है, जिसे अपनी लैंग्वेज के साथ में उसे जुड़ना बड़ा ही पसंद था और वो कहीं ना कहीं वो ट्राई करता है वहां पर अमेरिका में रहकर कि वो अच्छी गुजराती बोल सके। और इस ये जो वो ट्राई कर रहा है उसमें अपने पड़ोसी से वो सीखता है और वो सीखने में ऐसा होता है कि मैं थोड़ा उसकी हिस्ट्री में चला गया। तो डेफिनेटली मैं पहले आपको हिस्ट्री बता दूं कि एक बहुत ही बड़े राइटर हैं गुजराती के मधुराय, उन्होंने एक प्ले लिखा था शुरा ने शत्रुजीत। उसमें ये किरदार था जिसे बाई मारी बाउंड्री में लिया गया था और जो एक अमेरिका में पला बड़ा एक लड़का होता है जिसे, जैसे मैंने कहा कि उसे अपनी भाषा के साथ, अपने रूट्स के साथ जुड़ना बड़ा ही पसंद है और वो वहां रहकर भी वो उसे ट्राई करता है कि अपने रूट्स के साथ जुड़ सके। तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे एक चीज सीखने को मिली कि वो जब
अपनी नानी के बारे में उसने बहुत कुछ सुना होता है और अपनी नानी से मिलने के लिए वो इंडिया आता है और देखता है कि उसकी नानी की जो हालत है, इट्स लाइक अ डोरमैट, और उसके जो पति है, उसका बेटा है, उसकी बहू है, उसे इज्जत नहीं देते हैं घर में। जबकि एक वक्त था कि शी वॉज अ मल्टी टैलेंटेड, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी, और वो बहुत सारी चीज़ों में आगे थी। और लेकिन परिवार की जब वो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो कहीं ना कहीं वो दबती गई, अपनी जो आइडेंटिटी थी वो उसको खो चुकी थी। और जब ये लड़का वापस आता है तो उसकी आइडेंटिटी को वो वापस लेकर आता है, उसकी फैमिली के सामने उसे खड़ा करता है और अपनी फैमिली को सिखाता है कि आपको उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। वो आपकी बीवी है, आपकी माँ है, और आपकी सास है, तो आपको उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, भले ही वो, क्योंकि वो जब एक बैकबोन है आपके घर की, तब जाकर आप सारी चीजें कर सकते हैं। आपका नाम है, आप ऑफिस में जा सकते हो, आप ऑडिशन में जा सकते हो, सारी चीजें आपको हैंडी मिलती है और आप उसको इस तरह से कभी भी ट्रीट नहीं कर सकते, बिकॉज एक औरत होने से पहले वो एक इंसान है और आपको उसे इक्वली ही ट्रीट करना चाहिए। तो ये चीज मुझे उस कैरेक्टर में सीखने को मिली कि वो अपनी नानी को फिर से अपनी आइडेंटिटी वो देता है, और एंड में उसे पता चलता है कि वो खुद भी एक फेलियर था, जो अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए यूएस में यहाँ वहाँ भटक रहा था, लेकिन वो उसकी डॉक्यूमेंट्री कोई लेता नहीं था क्योंकि ही वॉज अ फेलियर, और उसे यहाँ पर इंस्पिरेशन मिलती है। तो ये चीज मुझे इस किरदार से सीखने को मिली कि अगर आप लाइफ में आप खुद भी टूट गए हैं या आपको फेलियर मिली है, और आपके पास अगर कोई इंसान आपके पास मदद के लिए आता है, या आपको अगर लगता है कि इस इंसान को मदद की जरूरत है, तो प्लीज उसे मदद कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो जवाब है, आपके प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, वो आप जब उसे मदद करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। और कहीं अगर उस वक्त आपको नहीं मिली तो आप उस प्रॉब्लम से जब बाहर आएंगे, और जब लाइफ में कई बार कहीं किसी जगह पर आपको कोई प्रॉब्लम मिलेगी, तो आपके लिए हेल्प कहीं ना कहीं से आ जाएगी। तो ये चीज मुझे सीखने को मिली कि आप अपने रूट से हमेशा जुड़े रहिए, क्योंकि आपका जो रूट्स होता है, आपकी जो लैंग्वेज होती है, आपकी जो मदर टंग होती है, वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। क्योंकि हर एक इंसान की जो भी उसकी मदर टंग होती है, हमारे भारतीय संस्कृति में ये चीज ऐसी है कि हर एक मदर टंग के साथ उसका कल्चर इतना स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है कि वो हर एक के डीएनए में है। अपनी लैंग्वेज से जब इंसान जुड़ता है, अपनी माँ की जब वो चीजों को वो सुनता है, अपनी माँ को देखता है, तो वो इंसान हमेशा अलग, एकदम से अलग हो जाता है। उसका एक रूप जो असली होता है वो बाहर आ जाता है। तो अपनी माँ को देखकर जब होता है, तो अपनी मदर टंग से जब इंसान जुड़ता है, तो उसे कितनी सारी चीजों, अपने कल्चर के बारे में चीजें पता चलती है, और वो अपने आप इंसान हो जाता है, क्योंकि कल्चर के साथ में एक ह्यूमैनिटी हमारी जुड़ी हुई है। ये एक इंडियन कल्चर है कि जो हर एक चीज में ह्यूमैनिटी के साथ में जुड़ी हुई है, उसमें साइंस भी है, उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी है, उसके अंदर रिलीजन भी है। तो ये चीज मुझे सीखने को मिली कि हमारा, दो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एक पूरा एक डीएनए है इंडियन कल्चर का, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो आपको कहीं ना कहीं इंसान बनने पर हमेशा मजबूर करता है। अगर आप घर में रोटियां भी बनाते हैं तो आपको हमेशा सबसे पहले एक कौवे के लिए रोटी निकालनी पड़ती है, गाय के लिए निकालनी पड़ती है, एक कुत्ते के लिए रोटी निकालनी पड़ती है। तो ये आपको ह्यूमैनिटी वहीं से सिखाती है कि यस, आपको कहीं ना कहीं किसी को दाना देना है, किसी को रोटी देनी है, किसी का पेट आपको भरना है, आपके घर पे कोई आया है तो उसको आपको हेल्प करनी है। दिस इज आवर कल्चर। तो ये चीज मुझे फिर से मुझे सीखने को मिली, और डीपली मुझे सीखने को मिली कि ये मैं हमेशा बचपन से भी अपने घर में देखता आया हूँ, और मेरे अंदर ये थी, लेकिन इस कैरेक्टर से मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। और जो कैरेक्टर मैंने जो परफॉर्म किया था, उससे मेरे पास इतने सारे लोग आए कि आपका ये किरदार देखकर हमें लाइफ में एक मोटिव मिल गया, हमें लाइफ में इतनी बड़ी इंस्पिरेशन मिल गई। कई मुझे मैसेजेस आए कि आपका ये प्ले देखकर, परफॉर्मेंस आपका देखकर मैं डिप्रेशन से बाहर आ गई हूँ। किसी के घर में औरतों की बड़ी इनकी इज्जत नहीं होती थी, उनका बड़ा इंसल्ट होता था, अपमान होता था, उनको बड़ी बुरी तरह से रखा जाता था, और ये प्ले देखने के बाद में ऐसा हो गया कि उनकी लाइफ में चेंज आ गया। तो मैं कहीं ना कहीं, जो मेरे पहले प्ले से मुझे एक चीज मेरे अंदर थी कि मेरी जो आर्ट जो मुझे भगवान ने दी है, और मुझे ये एक जरिया दिया गया है, तो मेरा हर एक काम कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में वो इम्पैक्ट ला सके, चेंज ला सके, वैसा होना चाहिए। और भगवान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये एक चीज जो मैं खुद सोच रहा था, मुझे इस चीज को करने का मौका मिला, और जब लोग मुझे आकर ये मैसेज देते थे तो मुझे और उस चीज में से सीखने को मिला कि नहीं, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती है, लेकिन जब ऐसे मुझे मैसेज मिलते थे
तो वो चीज़ों से मेरी नेगेटिविटी हमेशा चली जाती थी। मेरे पास रिसेंटली अभी एक मैसेज आया कि सिडनी में एक बच्चा था जो मेरी गुजराती फिल्म जो थी वो देखकर वो वहीं पे पला बड़ा है, वहीं पे बॉर्न हुआ है, और वो गुजराती बड़ी टूटी गुजराती बोलता था, लेकिन मेरी फिल्में गुजराती फिल्म देखकर वो फ्लुएंटली गुजराती बोलने लगा। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि मेरा जो काम है वो कहीं ना कहीं वो एक किसी की लाइफ में बड़ी इम्पैक्ट लेकर आए। तो ये चीज वापस जो मैंने दी थी वही मेरे पास वापस आती थी। तो जैसे थिएटर के बारे में अगर जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें वही चीज हुई कि मेरे पास जब मेरा एक लो फेस था तो उस वक्त मेरे पास बाय मारी बाउंड्री के बहुत सारे मैसेजेस आते थे और आज भी आ जाते हैं। तो मुझे हमेशा एक इंस्पिरेशन वापस मिलती है कि नो, यू हैव टू फाइट, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू सी टू इट कि आपका काम किसी की लाइफ में इम्पैक्ट लेकर आए। चाहे वो कॉमेडी हो, तो ऐसे लॉकडाउन के टाइम में, स्ट्रेस के टाइम में उनके चेहरे पर अगर वो मुस्कान ला सकती है, सो यू डू योर वर्क इन सच अ वे कि लोग 50 बार देखें तो भी उनको वो फ्रेशनेस उस कैरेक्टर में, उस काम में वो नजर आए और आप उनका स्ट्रेस रिलीव कर सकें। सो यस, दिस इज द थिंग। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि मेरी लाइफ में भूल भुलैया आया। और भूल भुलैया से पहले मैं अगेन एक थिएटर मैंने एक एक्सपेरिमेंटल प्ले किया था जिसका नाम था तरण गुजराती। तो इसके अंदर मुझे 7 किरदार प्ले करने थे और अगेन एक 10 साल की उम्र से 70 साल की उम्र के किरदार की पूरी जर्नी थी, जो अगेन मेरी एक आदत के अनुसार मैंने वापस मेरे जो डायरेक्टर थे उनसे कहा कि लेट्स इसको थोड़ा टफ बनाते हैं। और टफ बनाने में चीज़ ऐसी हुई कि मैंने सातों के सातों कैरेक्टर को एक अलग ही बना दिया। 10 साल का जो था वो कहीं एक छोटा बच्चा है, फिर 20 साल का है तो कहीं सूरत का है, तो उसकी स्लैंग लेकर आया था, एक बॉडी लैंग्वेज अलग करती थी। और ये सारे फिर अहमदाबाद, फिर एक कोई घाटकोपर का कोई एक व्यापारी है, उसके बाद में कोई टाउन का कोई बड़ा बिजनेसमैन है, उसके बाद में एक MBA जो नया जॉब, शादी भी नई हुई है और उसको जॉब का भी प्रेशर है, ये सारी चीज़ें थी। और उसका एक अंडरलाइन एक ये था कि बॉम्बे में जो एक दुखद घटना हुई थी, ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, तो ये इसको इस तरह से बनाया गया था कि मुझे स्टेज पर ही मुझे 7 किरदार विदाउट गेटअप चेंज किए हुए मुझे परफॉर्म करने थे, बॉडी लैंग्वेज, डोनेशन सब कुछ चेंज करना था। और उसके बाद में ऐसा था कि फर्स्ट हाफ वाज कॉमेडी और उसके बाद में ये अनाउंसमेंट होता था कि अब इसी जो किरदार हैं, सातों के सातों किरदार हैं, बॉम्ब ब्लास्ट के बाद इनकी लाइफ कैसी है। तो मेरे लिए ये एक इम्प्रॉम्प्ट एक ऐसी चीज आई थी मेरे पास कि ऐसे किरदार किस तरह से रिएक्ट करेंगे, कि जो एक वक्त में अभी वो हंस रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां हैं, वो एक लाइफ अपनी तरह से जी रहे हैं, और सडनली उनकी लाइफ में एक शॉक आता है कि जिस इंसान से वो प्यार करते हैं वो अब नहीं रहा, या लोगों के अंदर डर बैठ गया था कि मुझे अपने स्पाउस से, अपने हस्बैंड से या हस्बैंड वाइफ से पूछता था कि या पूछती थी कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि कल ना उठ के अगर मैं नहीं रहूंगा तो नहीं रहूंगी तो वो एक चीज मुझे सीखने को मिली उसके अंदर, वो एक इम्पैक्ट आई कि लाइफ जिए, अच्छी तरह से जिए, लोगों को माफ कर दें, अगर कुछ गलतियां हुई भी हैं उनसे तो उनको माफ कर दें, अपने साथ में जो भी लोग हैं उनके साथ में बहुत बड़ी अच्छी तरह से रहें, क्योंकि लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है, वो कभी भी एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है। और फिर उस गिल्ट के साथ अगर आपको रहना पड़ेगा लाइफ टाइम, तो वो एक बड़ा ही पेनफुल प्रोसेस होता है, जिसको लाइफ के साथ में फिर उसको अपना एक लाइफ का भाग बना के ही आपको जीना पड़ता है या आपको भूल जाना पड़ता है। तो ये एक बेटर एक चीज़ है कि लाइफ, इंसानियत हर जगह एक ही होती है, डर एक ही तरीके का होता है कि अगर किसी को आप खो दोगे तो क्या हो। तो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी कभी दूसरों के साथ जो व्यवहार जो होता है वो हमेशा अच्छा रखे। उसके अंदर बहुत सारे शेड्स थे कि लोगों कोई किसी को चीट कर रहा है, किसी के साथ में किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, लेकिन जब ऐसी कोई चीज़ आती है तो ऑल ऑफ अ सडन लाइफ पूरी चेंज हो गई थी उनकी। तो एक चीज़ समझ में आई कि लाइफ में कभी किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, कभी किसी को चीट मत कीजिए। भगवान की दया से मेरे माँ बाप के संस्कार ऐसे हैं कि मैंने ना कभी किसी प्रोड्यूसर के साथ चीटिंग की है, ना कभी अपने को एक्टर के साथ चीटिंग की है, ना अपने रिलेशनशिप में कभी चीटिंग की है, और ना ही करूँगा, क्योंकि ये लाइफ ने मुझे ऑलरेडी एक चीज़ एडवांस में मुझे एक सिखा दी थी कि अगर आप लाइफ को सही तरीके से अगर जियोगे
तो लाइफ में हमेशा आपके साथ अच्छा होगा। तो ये एक चीज मेरे साथ हुई थी। तुषार जी का कहना, तुषार जी सेइंग हु इज योर फेवरेट डायरेक्टर इन गुजराती। गुजराती में फेवरेट डायरेक्टर मेरे अगर कोई है तो आई वुड से सौम्य जोशी इज वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर। उसके बाद में मेरे जिनके अंडर में डेफिनेटली मैं काम करना चाहूँगा जो है परेश रावल, तो वो मेरे बड़े फेवरेट डायरेक्टर हैं। और आई गेस यस, उसके अलावा जो लोग थे वो एक्चुअली नहीं रहे, माय बैड। एंड यस, दिलीप जोशी, ही इज आल्सो अ डायरेक्टर एंड आई वुड डेफिनेटली लाइक टू वर्क अंडर हिम, अंडर हिज गाइडेंस एज एन एक्टर। Rajesh Vora, please say something about your role in 102 Not Out. It's two legends in cinema. Again, I'm very fortunate. 7 साल के बाद जो प्ले 102 Not Out is a गुजराती प्ले, और गुजराती प्ले मेरे पास ऑफर हुआ था। जैसे कुणाल ने आगे पूछा कि किशन वर्सेस कन्हैया में कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, तो किशन वर्सेस कन्हैया को मैंने परेश जी को मैंने कहा कि येस आई एम डूइंग दिस प्ले, और 2 दिन के बाद मेरे पास सौम्या जी ने मुझे ऑफर दी कि ये प्ले 102 Not Out में बना रहा हूँ और I want you to work in this। और मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया, लेकिन जो बात सुनी थी कि जो चीज़ आपके नसीब में होती है वो आपके पास फिर से वापस आती है, तो मेरे पास आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि 7 साल के बाद मेरे पास 102 Not Out जो प्ले मेरे पास मुझे करने नहीं मिला था, मुझे सौम्य जी के साथ काम करना था लेकिन मैं नहीं कर पाया, तो 7 साल के बाद में मेरे पास वो फिल्म आई, और फिल्म में इतने बड़े लेवल पर आई कि मुझे 2 लेजेंड के साथ में काम करने का मौका मिला। उनके सामने डेफिनेटली मेरा जो काम था, मेरा वो आधा काम उन्होंने मेरे लिए बहुत ही इजी कर दिया था, बिकॉज दे आर सो ग्राउंडेड। ऑफ कोर्स अफसोस हमारे साथ ऋषि जी नहीं रहे हैं, बट इन दोनों लेजेंड्स ने मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया था कि उन्होंने मुझे कभी ये फील नहीं करवाया कि वो बच्चन के साथ काम कर रहे हैं या ऋषि कपूर के साथ काम कर रहे हैं। तो मेरा काम वहीं आधा हो गया था, और इसी वजह से शायद मेरा परफॉर्मेंस भी जो लोगों को अच्छा लगा, और आज भी लोग उसे मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं इस बारे में, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली वो उन दोनों की वजह से, उनकी महानता की वजह से कि वो आज भी वो लोग भी लेजेंड होने के बावजूद आज भी स्टूडेंट्स वो है। और ऋषि जी को मैं यही कहूँगा कि वो है, बिकॉज उनका काम, उन्होंने उनकी जो इंसानियत, या उन्होंने जो एक एक्टर के बतौर उन्होंने मुझ जैसे छोटे आर्टिस्ट को इतनी रिस्पेक्ट दी थी, बच्चन सर ने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी है, तो उसके लिए मैं ऋषि जी के लिए डेफिनेटली यही कहूँगा कि वो आज भी है, उनका काम हमारे साथ रहेगा, उनके परफॉर्मेंस जो उन्होंने दिए हैं वो हमारे साथ रहेंगे। तो यस, दिस इज दिस थिंग कि 102 में मेरा ये रहा एक्सपीरियंस। तुषार जी सेइंग डिड यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद कांति मडिया? नो, आई वांटेड टू वर्क विद हिम। और जब मैंने जो कहा कि मेरा प्ले था लगन गाड़ी चाले आड़ू, उस वक्त वो मेरा प्ले देखने आए थे, एंड उन्होंने एक मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि कांति मडिया जी ने मुझे आकर ये कहा था बैक स्टेज में दैट यू डिड अ वंडरफुल जॉब, और मेरे लिए इतनी बड़ी कॉम्प्लीमेंट थी, मेरे लिए अगेन इतना बड़ा एक बूस्टर था मेरे कॉन्फिडेंस के लिए कि मेरा काम जो था वो कांति मडिया जी ने अगर ये कहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए वो एक सर्टिफिकेट था दैट यस, आपने जो किरदार बनाया और जो आपने सोचा था कि आप इस किरदार को इस तरह से परफॉर्म किया जाए तो वो इम्पैक्टफुल होगा, और वो मुझे उनकी तरफ से वो कॉम्प्लीमेंट मिली थी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि उस प्ले के मेरे ख्याल से वो जब मैं प्ले कर रहा था, शायद वो प्ले खत्म हुआ, उसके बाद ही एक्सपायर्ड, तो नहीं मिल पाया था, काम करने का मौका नहीं मिल पाया मुझे। सो या दैट्स द थिंग। ललित जी का कहना यह है कि योर सेशन इज वेरी यूजफुल एंड एनलाइटनिंग for newcomers in theatre. Theatre doesn't make an artist a master of any stream, but it makes us a good student of life. The course never gets finished. It remains incomplete at the end of our life. Yes, Lalitji, absolutely, because as we say in theatre, that show must go on and life must go on. So ये वही चीज़ है कि आप लाइफ के अंदर जितना सीखोगे उतना कम है, जितने किरदार करोगे उतने आपको कम ही पढ़ने वाले हैं। और अगर हम सही मायनों में, अगर लाइफ में भी अगर हम स्टूडेंट रहते हैं, बहुत सारे लोगों से अगर हम सीखते हैं तो बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग। और स्टूडेंट रहने में जो मजा है वो हर एक इंसान को पता है कि स्टूडेंट अगर आप रहेंगे तो मस्ती कर सकते हैं, प्रोफेसर बनकर आप मस्ती नहीं कर सकते हैं। तो यस, दैट इज द थिंग। बाय मारी बाउंड्री के बाद मेरे पास जैसे मैंने कहा कि ये 3 गुजराती जो 7 किरदार मैंने किए, तो वो 7 किरदार के बाद मेरे पास जो मौका मिला मुझे, मैं तकरीबन कुछ
एक 2 साल के लिए मैं टेलीविजन में चला गया था, और उसके बाद में मैंने ऑफ कोर्स क्योंकि बाय मारी बाउंड्री के बाद ये जब मैंने 7 किरदार किए, उसके बाद मुझे पता चला कि इस प्ले के प्रोड्यूसर नीरज वोरा जी थे, जो भी हमारे साथ नहीं रहे। सो ही वाज द गाय हु टुक मी टू बॉलीवुड। मेरी उंगली पकड़कर मुझे ले गए और भूल भुलैया में कहा था कि ये लड़का जो चंदू का रोल है वो जिमित त्रिवेदी करेगा। तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर हिज, सॉरी मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं थैंक यू बोलूँ वो भी उतना कम है, क्योंकि उन्होंने मुझे वो रास्ता दिखाया और मैं बॉलीवुड में पहुंचा वहां तक, बड़ी ही आसानी से मैं पहुंच गया। सो दैट इज ऑल, दैट होल क्रेडिट गोज टू नीरज जी एंड नौशील मेहता, जिन्होंने वो प्ले लिखा था और कि उन्होंने ये, उनका ये आग्रह था कि मैं ये प्ले करूँ ही करूँ, अगर मैं अगर ना कहता हूँ तो वो इस प्ले को नहीं करेंगे। आई एम रियली थैंकफुल टू नौशील जी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, एंड ऑफ कोर्स नीरज वोरा जी। मैं टेलीविजन में गया, उसके बाद में मेरे पास एक बड़ा ही सुंदर प्ले मेरे पास आया जिसका नाम था रिटर्न टिकट अगेन, जो प्रोड्यूस किया था उमेश जी ने, जिन्होंने मुझे मौका दिया था खिलैया प्ले में। बहुत कुछ सीखा उनके पास से मैंने, किस तरह से नई चीज़ों को करते रहना चाहिए, हमेशा कुछ नई चीज़ों को लेकर आना चाहिए, जो उमेश जी की हमेशा एक आदत रही और आज भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसे किशन वर्सेस कन्हैया, ही इज द डायरेक्टर, फिल्म भी ओ माय गॉड उन्होंने ही डायरेक्ट की है। और अगेन 102 नॉट आउट इज द वन, जिनकी वजह से मैं उस प्ले में उमेश जी और सौम्य जी और चिगना तीनों की वजह से मुझे मौका मिला वो करने का। तो जब मुझे ये 102 नॉट आउट का जब मुझे ऑफर दी गई थी, उस वक्त मैं ये रिटर्न टिकट प्ले कर रहा था जो प्रोड्यूस किया था उमेश जी, और उमेश जी ने ये प्ले जो लाए थे, वो प्ले ऐसा था कि इट वाज अबाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और ये कई लोगों को शायद पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन वो होता है कि जिसमें इंसान इस जन्म में जो भी कर्म वो भुगत रहा है वो उसके पास्ट लाइफ के डीड्स होते हैं, मतलब उसके पिछले जन्म के डीड्स होते हैं। और ये एक ऐसा किरदार मुझे प्ले करने को मौका मिला था जिसे बहुत सारे फोबियाज हैं, बहुत सारे उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जबकि ये इंसान एक ऐसा है जो इतना गाय की तरह सीधा है, जिसने कभी सपने में भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा है। और जब ऐसे इंसान के साथ ऐसी घटनाएं होती है तो हम अक्सर देखते हैं, हम अक्सर हम हमारे आस पड़ोस में होते हैं, हमारी फैमिली में होते हैं, या हमारे रिलेटिव्स कहीं ना कहीं होते हैं ऐसे, हम अक्सर ये कहते हैं कि अरे यार बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। तो इस प्ले में मुझे ये चीज सीखने को मिली कि अलग अलग किरदार जो हम कई बार देखते हैं, लोग उनको बोलते हैं कि ये पागल है, जबकि वो फोबिया होता है। हमें कोई फोबिया नहीं होता है तो हम उस इंसान को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अरे ऐसा क्या थोड़ी होता है, ठीक है ऐसा नहीं होता है, वो सब हमारे मन की बात है। लेकिन जी नहीं, ये मन की बात नहीं होती है, ये कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है, जो मैं मानता हूँ, लोग शायद नहीं मानते तो कोई बात नहीं। और इसमें मुझे ये चीज़ सीखने को मिली कि कई बार हमें ये फ्रस्ट्रेशन आता है कि मुझे लाइफ में ये करना है, मेरे साथ में क्यों होता है, मेरे ग्रह क्यों इस तरह से हैं, मेरी लाइफ में क्यों हमेशा एक इंसान इस तरह का आता है, वही मुझे हमेशा क्यों चीट करके चला जाता है, या मैं किसी को चीट कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ। तो हम कहीं ना कहीं अपनी कर्म की साइकिल, कार्मिक साइकिल जिसे कहते हैं, सही कहा तुषार जी ने, उस कार्मिक साइकिल को हम खुद बनाते हैं, जिसका पावर हमारे खुद के पास होता है कि हम उस कार्मिक साइकिल को तोड़ सकें। जो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि मोक्ष, कि जितने कर्म आप कम बांधोगे लोगों के साथ और जितने अच्छे कर्म करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और इस प्ले के अंदर मुझे ये सीखने को मिला कि जैसे जैसे मैं अपने जो पुराने कर्म थे वो मुझे जब पता चलता है कि मैंने इस इंसान के साथ बुरा किया था इसलिए वो मेरे साथ बुरा कर रहा है, तो अगर मैं उस चीज की माफी मांगता हूँ, वो अगर मैं उसके पास जाऊंगा, वो मुझे गाली भी देगा, लेकिन मुझे उस गाली को सुनना पड़ेगा। वो अगर मुझे बहुत सारी गंदी बातें भी सुनाएगा तो मुझे सुनना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये बात पता चली है और मेरा एक कर्म है, तो मुझे उसकी माफी मांगकर उस कर्म को तोड़ना पड़ेगा, उस कर्म को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर मेरी लाइफ सही मायने में सही होगी। तो थोड़ा सा अगर हम अपनी लाइफ में भी अगर इस बारे में सोच लें तो बहुत सारे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। तो आई गेस मुझे ये चीज सीखने को मिली कि मेरी लाइफ में भी कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, मैंने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया होगा, और अगर मेरे पास कहीं से हेल्प आ रही है तो मैंने किसी का भला किया होगा। तो आई थिंक ये जो चीज थी वो इतनी गहरी असर छोड़ गई, क्योंकि मैंने इतना सारा रिसर्च किया था इसके ऊपर,
कि लोगों को फोबिया क्यों क्यों होते हैं, किस तरह से होते हैं, क्या होता है, और डिप्रेशन किस तरह से आता है, स्ट्रेस लेने से क्या होता है, स्ट्रेस के क्या मायने होते हैं, कौन सा उसकी एक बॉर्डर लाइन होती है जो क्रॉस हो जाती है तो उसके बाद में क्या होता है, एक मेंटल इलनेस आ जाती है। तो मुझे मेंटल इलनेस के बारे में मुझे एक अवेयरनेस मेरे पास आई, और उसमें ये हुआ कि मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग थे, तो अगेन मैं वापस से फिर से ज्यादा इंसान बन गया। अपने आस पड़ोस में जो लोग थे, लोग जैसे इग्नोर करते थे, किसी के बारे में बुरा बोलते थे, तो मैं हमेशा उनसे कहता था कि ऐसा मत सोचिए, कहीं ना कहीं कुछ चीजें अलग भी होती है। मुझे लाइफ को देखने का, और लाइफ में जो लोग हमारे साथ होते हैं उनकी तरफ देखने का मेरा नजरिया एक अलग ही नजरिया मुझे मिला, एक बहुत ही पॉजिटिव नजरिया मिला। तो उसकी वजह से मेरी खुद की लाइफ में भी पॉजिटिविटी काफी बढ़ गई, क्योंकि हमेशा हम लोगों के लिए एक सर्टिफिकेट दे देते हैं उनको कि ये इंसान गंदा है, ये बुरा है, और इसने ये ऐसा ही किया है। उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास लोग ऐसे आ जाते हैं, हम अच्छे होते हैं लेकिन लोग सामने से हमारे साथ बुरा बर्ताव ही करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें खुद को भी उससे डिस्टेंस रखना पड़ता है। लेकिन वो क्यों इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, जब हमें उस चीज के बारे में कोई चीज पता चल जाती है, जैसे एसी ऑन होने से क्या होता है, रूम ठंडा होता है, हमें भी अच्छा लगता है, गर्मी में काफी हमें राहत मिलती है। तो ये जब एक नॉलेज आ जाता है तो हमारे बहुत सारे जवाब भी हमें मिल जाते हैं, और हम बड़ी सुकून के साथ बैठ सकते हैं। और खाना क्यों खाना चाहिए, ट्रेन अगर आ रही है तो हमें ट्रैक पर नहीं चलना चाहिए, ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं। लेकिन जब उसका नॉलेज आ जाता है तो हमारे पास हमारे बहुत सारे जवाब भी मिल जाते हैं, और बहुत सारे कर्म बांधने से भी हम लोग अपने आप को रोक लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सीख मेरी लाइफ में मुझे मिली, और जो मैं आज भी, क्योंकि मैं थोड़ा स्पिरिचुअल इंसान भी हूँ, तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहता हूँ। आज भी कहीं ना कहीं कुछ कर्म अगर हो जाते हैं तो क्यों हुए हैं उसको एनालिसिस करता हूँ, और एनालिसिस करने के बाद में उसका कहीं ना कहीं मुझे जवाब भी मिलता है। और भगवान हमेशा आपको उसका जवाब देता है, लेकिन आपको ढूंढने पड़ते हैं। तो मैं हमेशा ढूंढते रहता हूँ, जो मेरी आदत एक बन चुकी है, ऑब्जर्वेशन, रिसर्च। तो ये सारी कहीं ना कहीं थिएटर की वजह से मेरी अपनी लाइफ में भी मुझे बहुत सारे जवाब मिल जाते थे, और आज भी मिल रहे हैं। Tushar is asking, do you have one or two favorite Gujarati play or play writes? Definitely. गुजराती प्ले मेरे फेवरेट जो मुझे खुद को भी करना है उसका नाम है तोखार, और तोखार जो प्ले है वो परेश जी ने परफॉर्म किया था, और बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस था उनका इस प्ले के अंदर, जो मुझे करना है। होपफुली कभी मैं कर पाऊंगा। इट इज वेरी इंटेंस, वेरी डार्क, अगेन वेरी डार्क प्ले टू परफॉर्म, और बहुत सारी एनर्जी भी उसमें लग सकती है, और लगेगी ही डेफिनेटली। तो मुझे वो एक प्ले मेरा बहुत ही फेवरेट है, महारथी, जो परेश जी ने किया था। तो अगेन दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट प्ले। उसके बाद वैसे पुराने बहुत सारे प्लेज हैं जो कांति जी ने किए थे, शैलेश दवे ने किए थे, शैलेश जोशी ने किए थे, तो अरविंद जोशी ने किए थे। तो ऐसे बहुत सारे जो पुराने प्लेज जो अब मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब का माहौल बदल गया है, बहुत सारे कॉमेडी प्लेज ही आते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से वो सारे प्लेज मेरे फेवरेट हैं। और प्ले राइटर्स का अगर आप मुझे नाम दे तो प्ले राइटर्स में डेफिनेटली मधुराय, उत्तम गड़ा, तो यस, सिद्धांशु यश चंद्र, तोखार के राइटर। तो थैंक यू तुषार जी, थैंक्स अ लॉट। मैं उनका नाम भूल गया था एक्चुअली, मैं कुछ दूसरा नाम मेरे दिमाग में आ रहा था। एक्वस, करेक्ट, एक्वस के ऊपर से ये प्ले एडेप्टेशन हुआ था उसका, और परेश जी ने परफॉर्म किया था। सागर इज आस्किंग, डू यू हैव वर्क विद एनी न्यू टैलेंट व्हिच यू कैन मेक अमेज्ड बाय सी हिज और हर एक्टिंग? डेफिनेटली मैंने देखा है, जैसे आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय वन एक्ट्रेस जो बॉलीवुड में भी है, जिसने फिल्म की है जिसका नाम है अंगीरा थर। तो उस लड़की की एक्टिंग स्किल से मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ। उसके बाद में एक मराठी प्ले मैंने देखा था जिसका नाम था प्रपोजल, और उसमें एक लड़की जो थी जो प्रोस्टिट्यूट का रोल कर रही थी, जो ट्रेन में घूमती है, लास्ट ट्रेन जो होती हैं उसमें घूमती रहती हैं। तो उस लड़की ने जो परफॉर्मेंस दिया था, दैट वाज अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दिया था। एंड मैं उसके आगे मतलब मैं ऐसे झुक गया था, क्योंकि उस लड़की से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि कितना सटली आप परफॉर्म कर सकते हो, और जब एक दूसरा इंसान बोल रहा है या उसकी सोलोलोगी या उसका सीन है वो, उसमें भी आप अपना मार्क कैसे छोड़ सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग उसकी जो लाइन्स है, या उससे
उसके सीन को, इमोशंस को जरा भी, उसके ग्राफ को जरा भी डिस्टर्ब किए बगैर आप किस तरह से परफॉर्म कर सकते हो। तो यस, उस लड़की का मैं नाम भूल गया हूँ, शी इज आई गेस कुलकर्णी, उस लड़की का नाम भूल गया हूँ, बट यस शी वाज इन द प्रपोजल, मराठी नाटक में वो लड़की थी। तो यस, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दीज टू गर्ल्स। लड़के में मैंने एक नया लड़का मैंने देखा था, एक प्ले देखा था मैंने, जिसका नाम था दादा गुड न्यूज है, अगेन मराठी। तो उसमें एक लड़का था, नया ही लड़का था और पहली बार परफॉर्म कर रहा था। तो काफी इम्प्रेस हुआ था उस लड़के से, मैं बहुत एंजॉय भी किया था, बड़ा ही सटल परफॉर्मेंस उसने दिया था। तो यस, इसके बाद में मैंने मोनोलॉग्स किए। तो मोनोलॉग्स भी मेरे लिए पहली बार था और एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था एज एन एक्टर। इट्स अ वेरी वेरी टफ जॉनर एक एक्टर के लिए। तो उसमें मैंने न्यूयॉर्क एक मोनोलॉग किया था, जो लिखा था चंद्रकांत शाह जी ने, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट राइटर एंड अ वेरी ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। तो उन्होंने ये प्ले जो मोनोलॉग लिखा कि एक मुझे न्यूयॉर्क सिटी परफॉर्म करना था। और जो हमेशा ऐसा होता है कि लोग न्यूयॉर्क सिटी के प्यार में पड़ते हैं, लेकिन एक लड़की एक ऐसी आती है न्यूयॉर्क सिटी में और वो कुछ ऐसा काम कर जाती है कि न्यूयॉर्क सिटी उसके प्यार में पड़ जाता है। तो ऐसा क्या काम किया था उस लड़की ने, विच इज़ अ ट्रू स्टोरी, कि एक लड़की ने एक्सेंचर कंपनी, जो दुनिया की बहुत ही बड़ी कंपनी है, उसमें उस लड़की को जॉब मिला और बड़ी छोटी उम्र में उसे पता चला कि उसे कैंसर है। और उसने अपनी मतलब बहुत ही बड़ा जो उसका पे रोल था, उसका जो पैकेज था, वो छोड़कर उस लड़की ने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी लाइफ जो है वो डिसलेक्सिक जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने में मैं अपनी सारी ज़िंदगी जहाँ तक मैं जीऊँगी उसे गुजार दूंगी। और उसके पास जितने भी पैसे थे उसका उसने फंड बना दिया, वो एक ट्रस्ट बनाया और उसमें से उन बच्चों को आगे पढ़ाई वो कर सकें, उसके लिए वो लड़की ने वो ट्रस्ट बनाकर वो लड़की चली गई। तो मेरे भाग में अगेन एक ऐसी टफ मेरे पास एक जॉब आया जहाँ पर मुझे न्यूयॉर्क सिटी परफॉर्म करना था। तो बहुत सारे, एज आप न्यूयॉर्क अगर कोई गया है या कहीं पर देखा है कि मैनहट्टन एक ऐसी जगह है जहाँ पर गली गली में डिफरेंट आपको एक एनर्जी मिलती है, हर एक का एक अलग ही डिफरेंट शेड्स है और एक बड़ा ही रंगीन, जैसे माया जाल कहते हैं, मैनहट्टन इज लाइक दैट। तो मुझे वो परफॉर्म करना था। तो एक बड़ा अगेन एक टफ जॉब मिला, बहुत सारे इमोशंस को मुझे एक साथ मुझे पोर्ट्रे करना है। तो अपने माइंड को किस तरह से कंट्रोल कर पाओगे, कुछ इमोशंस ऐसे हैं जो मैंने कभी खुद नहीं एक्सपीरियंस नहीं किए थे, वो मुझे एक्सपीरियंस करने को मिले। और बीइंग अ सिटी एक आपका एक एटीट्यूड होता है, आपकी एक तासीर होती है, जिसे गुजराती में तासीर कहते हैं। तो ऐसा अगर एक लड़की के प्यार में पड़ता है तो किस तरह से आपको वो उस लड़की ने ऐसा क्या काम किया। तो अगेन वो एक मेरे लिए अगेन वापस एक लाइफ में एक ऐसा आया कि भगवान आपको हमेशा, जैसे मैंने कहा, कि मौका देता है। एंड टाइम एंड अगेन भगवान ने हमेशा मुझे मेरे किरदारों से, जो मेरे पास जो स्क्रिप्ट्स आई हैं, जो ऐसे प्लेज आए हैं, तो उसमें हमेशा मेरे पास यही चीज़ आई कि आपको लाइफ में पॉजिटिव ही रहना है, आपके पास ये एक मौका है, उसे यूटिलाइज सही तरीके से कीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ इसमें से सीखी, बड़ा ही टफ जॉब था उसे परफॉर्म करना। उसके बाद में मैंने दूसरा एक मोनोलॉग किया जिसका नाम था ब्लैक गोगल, जिसमें एक ऐसे लड़के की बात थी कि जो 10 साल का था और 10 साल में जिसका फादर नहीं था और सिर्फ उसकी माँ थी। और 10 साल में उसको एक ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से उसकी आंखें चली जाती हैं और उसकी माँ उसे अनाथ आश्रम में छोड़कर किसी और के साथ भाग जाती है। और इस लड़के के साथ में ऐसा था कि उसकी लाइफ में एक ही चीज़ थी कि उसकी माँ, उसके लिए मेमोरी एक ही थी, उसकी माँ। उसने जो कलर जो देखे थे वो उसकी माँ। और एक इंसान की लाइफ में माँ से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। और जब माँ से कोई एक इतना बड़ा धोखा मिलता है जो उसे बिट्रेयल था उसके लिए, और वो इंसान की उसे लाइफ में भी, जब उस कॉलेज में उसको वो पढ़ लिख कर बड़ा होता है, कॉलेज में जाता है और उसे एक लड़की से प्यार होता है और लड़की भी उसको किस तरह से बिट्रे करती है और उसको एक स्त्रीलिंग से नफरत होने लगती है। उसे हर एक चीज जिससे स्त्रीलिंग से जुड़ा जाता है, चाहे वो कुर्सी हो, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो एक फीमेल चूहा भी क्यों ना हो या बिल्ली क्यों, उसे हर एक चीज से उसे नफरत होने लगती है और उसका वो एक रेज निकलता है बाहर। और उसमें एक ऐसा शेड दिखाया गया था कि हम हमेशा ये देखते हैं कि कोई अगर हैंडीकैप कोई बंदा है या कोई स्पेशल चाइल्ड है तो वो बुरे नहीं होते हैं। नो, वो भी बुरे हो सकते हैं। उनके साथ जो घटनाएं होती है तो वो कहीं ना कहीं अगर उनके अंदर वो बैठ जाती है, वो नेगेटिव इमोशन बैठ जाता है,
तो वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में फैल जाता है और वो उनको कंप्लीटली डैमेज कर सकता है। तो ये एक चीज़ ऐसी थी कि लाइफ में अगर आपको कहीं मौका मिलता है तो ऐसे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें, और हमारी लाइफ में भी अगर कहीं ना कहीं हमें बिट्रेयल मिलता है तो उसको इतना आप मत लीजिए, इतना सीरियसली मत लीजिए। आपको हुआ है, शायद आपने कहीं कुछ बुरा किया होगा किसी का, इसलिए आपके पास आया, या आपको भगवान कुछ सिखाना चाहता है कि आप जल्दी से किसी पर भरोसा कर देते हैं, तो आपके साथ ये बार बार होगा। और जिंदगी आपको बार बार हर एक चीज सिखाती है। बार बार जब आपके साथ में कुछ रिपीटेटिव होता है, जैसे मैंने कोट लिखा था जो मैं हमेशा पोस्ट करते रहता हूँ अपनी सोशल मीडिया पर, कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी बार बार अगर होता है, चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर हो, चाहे वो प्यार हो या बिट्रेयल हो, ब्रेकअप हो, तो आपको इट्स टाइम टू लुक एट वेरी क्लोजली व्हाई इट इज हैपनिंग। क्योंकि हम हमेशा यही चीज होता है कि किसकी वजह से ये हुआ, हम उसके ऊपर दोष डाल देते हैं, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि ये बार बार क्यों हो रही है। सक्सेस मिलती है तो हम हमेशा ये देखते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ, और अगर फेलियर मिलता है तो हम हमेशा 10 लोगों के ऊपर ये डाल देते हैं कि इनकी वजह से हुआ। सो आई गेस ये एक ऐसी चीज होती है कि जो बार बार अगर कुछ चीज होती है तो वो क्यों हो रही है, हमें उस चीज को बड़ी बारीकी से देखना चाहिए। तो ये चीज मुझे अपनी लाइफ में एक समझ में आया कि डोंट बी नेगेटिव, लाइफ इज अ बैलेंस ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ही आपकी लाइफ की साइकिल सही चलेगी। तो आपको नेगेटिव जितना कम करेंगे तो उतना पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी, आपकी लाइफ भी अच्छी रहेगी और आपके आसपास आप उस पॉजिटिविटी को स्प्रेड कर पाएंगे। एंड फाइनली मैं 8 साल के बाद, क्योंकि मैं फिल्मों में चला गया था, टेलीविजन किया, फिर अभी गुजराती फिल्मों में था, उसके बाद में मैं वापस आया हूँ। उसके बाद 8 साल के बाद मैंने प्ले किया, जो हाल ही में बिकॉज ऑफ लॉकडाउन अभी शोज रुके हुए हैं, और शायद जल्द ही लॉकडाउन के बाद में चीज़ें नॉर्मल होगी तो शुरू हो जाएंगी। तो वो प्ले ये था कि आने भी तो यारो, और आने भी तो यारो का बहुत ही बड़ा एक किरदार है कि नॉर्मल एक लड़का है, फादर उतना कमा नहीं रहे हैं, फादर ने ऑलरेडी लोन ली हुई है, किसी के पास से बड़े ज्यादा ब्याज पर उन्होंने पैसे उठाए हैं, और अब वो आदमी वसूली करने के लिए आ रहा है, और एक झूठ को छुपाने के लिए वो दूसरा झूठ, तीसरा झूठ वो करते ही जाता है, क्योंकि फादर उतना केपेबल नहीं है और बेटे के पास वो दिमाग है कि वो कर सकता है, और वो करते जाता है। फाइनली ही रीच टू अ लेवल कि जहां पर उसका वो जो भांडा है वो फूट जाता है, और वो उस लेवल तक पहुंच जाता है कि वो अपनी किडनी भी बेचकर पैसे लेकर उसकी जो उधारी है वो चुकते कर दें, और जो उसने सारा ये झूठ बोला है वो सब वैसे का वैसा ही रहे, किसी को पता ना चले। और फाइनली ऐसा होता है कि भैया ये पता चल जाता है। तो ये किरदार एक ऐसा समझ में आया कि आप सच्चे हो, सच अगर बोल देते हो पहले तो आपका उसी वक्त नुकसान होगा, लेकिन अगर आप जितनी बार झूठ बोलते जाओगे उतनी बार आप एक नई प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी करते ही जाओगे, जो एंड में सब लोग आपके पास वापस आएंगे, और उस वक्त आप सबको हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर एक आपने झूठ बोला है और आप उसी वक्त उसको कह देते हो कि आई एम सॉरी, मुझसे ये गलती हुई है, तो आप उसी झूठ को उधर ही आप सॉल्व कर देते हो। लेकिन तो आप एक इंसान को 1-on-1 आप हैंडल कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक साथ 10 लोगों आपके सामने आ जाएंगे तो आप उनको हैंडल नहीं कर पाओगे, until unless कि आप सही हैं तो ही, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। सो यस, दिस इज माय जर्नी टिल डेट, थिएटर की रही है। थैंक्स अ लॉट। सो आई गेस दिस इज माय जर्नी एंड टिल डेट, एंड आई एम स्टिल लर्निंग, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम एन एक्टर। मुझे बनना था शेफ, जाना था डिफेंस आर्मी में, और सीखा मैं डायमंड असॉर्टमेंट का, और मैं आया हूँ फाइनली एक्टिंग में। सो आई एम रियली फॉर्चुनेट कि मुझे एक ही जिंदगी में बहुत सारी लाइफ जीने का मुझे मौका मिल रहा, तो इसके लिए मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लोगों ने मुझे जो इतना सारा प्यार दिया है, तो उसके लिए मैं लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि इस लॉकडाउन के स्ट्रेस के पीरियड में मैं लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सका हूँ। तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। Thank you God, thank you everyone, and I'm really thankful to Coconut Theatre for giving me this opportunity to connect with people। और अपनी ये जो बात जो थी, जो मेरे अंदर एक्चुअली ये पहली बार हुआ है कि मैंने पहली बार अपनी जो पूरी जर्नी है, जो मैं किरदारों से क्या सीखा हूँ, उसकी इम्पैक्ट मेरी लाइफ में क्या रही है, वो मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ। तो आई एम रियली थैंकफुल। So thank you very much, Rashmin Majitia, for making this platform, wonderful platform for theatre, and the way you are working in for theatre, for art,
आई नो आप फिल्मों में भी आपका प्रोडक्शन चल रहा है, आप इवेंट्स भी इतने ब्यूटीफुल आप इवेंट्स करते हैं और बहुत सारे प्लेस भी आप ये अपनी इवेंट्स के थ्रू प्रमोट करते हैं, लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं. सो थैंक यू वेरी मच. और मुझ जैसे एक छोटे से कलाकार को आपने मौका दिया आज के दिन, तो आई एम रियली थैंकफुल टू द होल टीम ऑफ कोकोनट थिएटर एंड थैंक यू वेरी मच. सो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए, एवरीवन प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ. आई होप आप सभी को मजा आया होगा. मुझे भी काफी मजा आया आप लोगों के क्वेश्चन से, आप लोगों का प्यार देखकर. सो थैंक यू वेरी मच एंड यस, अगेन stay safe, take care and spread positivity, keep smiling. Thank you very much. Thank you, thanks a lot. Good night.